RCFC WR Pune. Attention of the major population of the world is now shifting to herbal drugs. Dealing with medicinal plants, therefore, becomes very important. As a consequence, herbal drug industries are flourishing on a global scale. Efforts are being made by the government for promoting cultivation, processing, and sale of medicinal plants, leading to formulation of novel and popular herbal drugs. Establishing facilitation centers for this purpose is a praiseworthy step taken by the government. Regional Facilitation Center, Western Region in the campus of Savitribai Phule Pune University, Pune was established in September 2020. This center functions to disseminate information about medicinal plants to all the stakeholders. This includes not only the farmers but sellers, buyers, small entrepreneurs, and even students. The center is established as an extended arm of the National Medicinal Plants Board. Inauguration of RCFC WR, headed by Professor Digambar Mokat, SPPU, Pune, was done on 29 September 2020 at the hands of Honorable Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush. The center has started activities since day one and formulated a team of young and enthusiastic students within a short period. Tireless hard work of Professor Mokat and his team has taken the center way ahead and crossed many important milestones. It may be mentioned that RCFC WR Pune has developed about 5 lakh quality planting materials in less than 2 years. More importantly, about half of these have been distributed to farmers in the regions covered by the center. Doors of the center are always open to the farmers, traders, and buyers. It may be mentioned with pride that nearly 5,000 farmers and collectors were trained by the staff for effective management of their agricultural practices. Further, more than 30 training programs and workshops were arranged at various locations, some of which are Jaipur, Jodhpur, Jhalabad, Gandhinagar, Rajkot, Amravati, Pune, Poda, Panji, Dudhani in the target regions. Besides these, more than 25 webinars, seminars, and online stakeholder meets were also organized. To bridge the gap between farmers, traders, buyers, and industries, several buyers-sellers meetings were organized. Direct interactions of these categories were held in these meetings. Linkages with more than 100 stakeholders were established from such meetings. The center has documented all the important activities in the form of booklets, pamphlets, posters, and brochures which are published from time to time. Social media, including newspapers, magazines, and electronic media, have taken due cognizance of the center's activities and have given wide publicity to them. Professor Digambar Mokat, Regional Director of the center, opines. Regional Facilitation Center plans to address all demands of the herbal sector. Issues like availability of the genuine plant material, good agricultural practices, good field and collection practices, conservation of medicinal plants are handled by the center. Successful attempts are made to bring farmers, traders, and herbal drug manufacturers on one platform. Additionally, a medicinal plant garden, seed and raw drug museum are also developed, which facilitate the farmers, researchers, and students. The center is also trying to help new entrepreneurs through the startup in the field of medicinal plants. The center is continuing its activities with full zeal and expects to reach a much larger population besides the stakeholders in the future. This is the contribution of RCFC in realizing expectation of the Prime Minister about herbs.
क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिमी क्षेत्र RCFC WR राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय भारत सरकार वनस्पति विज्ञान विभाग सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के 38वें वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वेबिनार सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश गोसावी सर, उपकुलपति डॉक्टर पराग काळकर सर, प्रभारी संयोजक प्राध्यापक डॉक्टर नदाब सर, विभाग प्रमुख वनस्पति विज्ञान विभाग, सहसंयोजक प्राध्यापक डॉक्टर आडे सर, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं समन्वयक क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिमी क्षेत्र और इस वेबिनार के आयोजक प्राध्यापक डॉक्टर मोहकट सर, प्रमुख संशोधक एवं क्षेत्रीय निदेशक RCFC WR पुणे, इन सभी के सहयोग से आयोजित किया है। हमारे आज के वेबिनार का विषय है औषधीय पादप क्षेत्र में किसान उत्पादक कंपनी, किसान उत्पादक संघ का गठन, प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज। मैं RCFC WR के प्रमुख संशोधक एवं क्षेत्रीय निदेशक प्राध्यापक डॉक्टर मोकट सर से विनती करती हूँ कि वे आज के वेबिनार का परिचय दें। थैंक यू। हमारा जो ये RCFC का जो कार्य चल रहा है वो हमारे जो मार्गदर्शक है हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश जी गोसावी सर, प्राध्यापक डॉक्टर पराग जी कालकर सर हमारे प्रकुलगुरु है और हमारे जो प्रभारी कुल सचिव है प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति भाकरे, इनके मार्गदर्शन में हमारा ये कार्य हमारे केंद्र का कार्य चल रहा है। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर AB नदाब, हमारे सह संयोजक और हमारे कोऑर्डिनेटर RCFC के डॉक्टर AB आडे, इनका भी मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। हमारा ये जो वेबिनार है 38वां, ये बहुत ही अलग सा वेबिनार है। इसमें औषधि पादप क्षेत्र जो हमारे है, इसमें FPC जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन होना जरूरी है। हम खेती तो कर रहे हैं और औषधि पादप या औषधि पौधों का अगर खेती करना है तो हमें FPC और FPO का गठन करना जरूरी है। और हम ये गठन करने के लिए इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रक्रिया क्या होता है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं, इसलिए ये वेबिनार का आज आयोजन हमारे सेंटर द्वारा किया गया है। ये वेबिनार में आज के हमारे प्रमुख अतिथि जो है डॉक्टर मुकुंद जी तापकीर सर, ये हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है और काफी अनुभव एक क्षेत्र में रहा है। कोऑपरेटिव हम सहकार किसको बोलते हैं, हमारा विश्वविद्यालय में सहकार के लिए डॉक्टर पद्मश्री विखे पाटिल जो चेयर है उसके वो चेयर प्रमुख भी रह चुके हैं और वो हमारे यहाँ पूना में जो कॉमर्स कॉलेज है उसमें प्राचार्य भी रह चुके हैं। वो भी आज हमारे ये वेबिनार में मार्गदर्शन करने वाले। लेकिन मुख्य तौर पे हमें यहाँ पे जो प्रोसेस जो FPC FPO जो कैसे गठन करना है, प्रक्रिया क्या है, इसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए हमारे यंग CA जो एट द एज ऑफ 22 साल पे ही वो CA बन चुके हैं और KC शिंदे एंड एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उन्होंने फर्म खोली है, पुणे स्थित ये फर्म है। ये हमें मार्गदर्शन काफी एक्टिव है, यंग है और उनका खुद का अनुभव एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। तो औषधि पादप क्षेत्र में गठन कैसे करना है FPC और FPO का, इसका मार्गदर्शन वो हमें देने वाले हैं। और ये FPC जो है FPO है, हमारे साथ और एक जो हमारे रिसोर्स पर्सन है उनका भी काफी एक्सपीरियंस है, माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी बोड़के जी। ये इनका अभिनव किसान संघ ये पुणे में काफी फेमस है, महाराष्ट्र में फेमस है, ये पूरे हमारे देश में जाने जाते हैं क्योंकि इनका जो संघ है जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इन्होंने स्थापित किया है, लगभग उनका 10 साल का ये FPC और कार्य तो 2 डेकेड से 2 दशकों से चल रहा है और लोगों को जमा करना, जुड़वाना, हजारों लोगों को, किसानों को जुड़ के वो एक खेती क्षेत्र में
चाहे वो फल हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो हमारे औषधि हो, इसमें ये कार्य कर रहे हैं। और ये किसान उत्पादक जो कंपनी है उसके द्वारा ये कृषि क्षेत्र या औषधि पौध क्षेत्र में वो क्या कार्य कर सक रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। और मैं थोड़ा आपको ये क्षेत्र में एफपीसी, हमारे औषधि पादप क्षेत्र में एफपीसी और एफपीओ का गठन करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लास्ट में थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ। आज के ये वेबिनार में उपस्थित सभी किसान भाई, सभी का मैं मेरे जो क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र है उसके तरफ से सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। प्रमुख अन्वेषक एवं क्षेत्रीय निदेशक करके मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये वेबिनार के द्वारा आपके मन में जो प्रश्न है, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप क्लस्टर, आप एफपीसी फॉर्म करिए, आप किसान और एक में कार्य करिए। तो ये जो है इसके द्वारा हम जरूर हमारा जो एफपीसी है, एफपीओ अगर हम गठित करते हैं तो एक क्षेत्र में हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा जो स्कीम्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको नर्सरी स्टैब्लिश करना है, जैसे कि प्रोसेसिंग करना है, तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए हमें समूह बनाना जरूरी है, क्लस्टर फॉर्म करना जरूरी है। और किसान उत्पादक कंपनी अगर हम स्थापित करते तो ये क्षेत्र में, क्योंकि मार्केट जो है मेडिसिनल प्लांट का या औषधि पादपों का बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है और डिमांड भी अच्छी इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में बढ़ रही है। तो ये वेबिनार से हमें ये सभी जानकारी मिलने वाली है। आप लास्ट तक ये वेबिनार से जुड़े रहिए, सभी जानकारी लीजिए। और जो हमारे तज्ञ हैं आज के, सीए चेतन जी शिंदे, माननीय श्री नैनेश्वर जी बुड़के, इनका मार्गदर्शन भी ले। मैं हमारी जो आज के ऑर्गेनाइजर, हमारी जो टीम है आरसीएफसी की, उनको विनती करता हूँ कि आप चेतन शिंदे सर का यहाँ पे मार्गदर्शन शुरू करें। ओवर टू संध्या। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आज के पहले वक्ता है सीए चेतन शिंदे सर, जिनका मैं आपको परिचय देती हूँ। सीए चेतन शिंदे सर केसी शिंदे एंड एसोसिएट्स कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के संस्थापक है। सर का ऑडिट और कराधान में 10 साल से अधिक ज्यादा अनुभव है। सीए शिंदे सर जीएसटी के क्षेत्र में कई कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार बन गए हैं। सर ने ई वे बिल और ई चलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 25 से 30 सेमिनार दिए हैं। इससे ग्राहकों को कराधान की जटिलताओं से निपटने से मदद मिली है। अपनी व्यावसायिक काम के अलावा सीए शिंदे सामाजिक कार्य के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। सर ग्रामीण स्कूल विकास और साक्षरता तथा वंचित समुदायों में शिक्षा को बेहतर बनाने के काम पर कार्य कर रहे हैं। आज के वेबिनार में सर हमें औषधीय पादप क्षेत्र में एफपीसी एफपीओ का गठन, प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज के बारे में किसान भाइयों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं आरसीएफसी तरफ से सर को विनती करती हूँ कि वे हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। Firstly, thank you so much to Professor Dean Mokat sir and whole team for giving me this opportunity and arranging this webinar. Also, thank you to Bodke sir and all attendees जिन्होंने अभी टाइम निकाल के इधर वेबिनार में भाग लिया है। मैं काफ़ी आई विल ट्राई कि सिंपली तरीके से आपको सारी चीजें इसकी क्लियर हो जाए। फर्स्टली तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्यों हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्या जरूरत है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की। नॉर्मली तो हम वैसे इंडिविजुअल लेवल पे तो किसान खेती कर ही रहे हैं, उनका प्लांटेशन हो रहा है, गार्डनिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपनी फसल बेच भी रहे हैं। बट दोस्तों अगर हम देखें इंडिया को तो अराउंड 55% ऑफ अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्री बेस्ड सेक्टर में है, बट उससे ओनली 14% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है।
तो कहीं ना कहीं इधर इनइक्वालिटी है। ओके, तो अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो उस क्षेत्र में हमारा जीडीपी भी ज्यादा होनी चाहिए। कई काफी सारे फार्मर्स है दोस्तों जिनका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब उनका लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 to 2 हेक्टेयर्स में 85% ऑफ फार्म होल्डिंग आ जाती है। तो दोस्तों अगर जहाँ काफी सारी कम एकड़ ये हो जाती है एरिया, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिनांस का प्रॉब्लम आ जाता है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी कम हेक्टेयर के लिए, लैंड के लिए अ, हम ट्रैक्टर ले नहीं सकते, मशीनरी नहीं ले सकते। हेलो। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए ओके सर। ओके ओके। मशीनरी नहीं ले सकते, तो ये ऐसी जो चीजें, इसके लिए हमने ग्रुप में आना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रुप में आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो अपना एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, उसका हमें काफी बेनिफिट मिलता है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 10 मेंबर हो, 10 मेंबर में से कोई बंदा मार्केटिंग में स्ट्रांग हो, कोई परचेस में स्ट्रांग हो, किसी का अकाउंट्स फाइनेंस अच्छा है तो वो पूरा कंपनी का अकाउंट्स देखे। ओके, किसी का अगर मार्केट में ज्यादा होल्ड है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो काफी सही तरीके से आपकी कंपनी का सेल्स बढ़ा सकता है। क्या इंडिविजुअल किसान ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों। इंडिविजुअल किसान ना सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट रख सकता है, या परचेज के लिए कोई बंदा नहीं रह सकता, या सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं रख सकता, या अकाउंट फाइनेंस सेपरेट से नहीं रख सकता। अभी इसमें ये इंपॉर्टेंट काफी ये हो जाता है, हर एक जन, कोई भी कंपनी अगर पेस्टिसाइड की आती है, सीड की आती है, तो अपने किसान भाई को बोल के जाती है कि आपको हम ये पेस्टिसाइड देंगे, इस पे इतना डिस्काउंट है, इसके श्योरिटी है। बट मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने का श्योरिटी हमें कोई किधर भी नहीं मिलता। दैट इज वाई वी आर स्टिल वेटिंग फॉर स्वामीनाथन आयोग की हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, हमें मार्केट अच्छा मिले। काफी सब कुछ सेल्स पे डिपेंड होता है। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अगर आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आप ये जो मिडल मैन है, आप वो बाईपास कर सकते हो। आप डायरेक्टली, जैसे कि लाइक डीमार्ट जैसी कंपनीज है, अगर आप देखोगे डायरेक्टली ऐसी काफी सारी मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में कंपनीज है, ओनली ऑर्गेनिक में काफी सारी कंपनीज है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ एग्रीमेंट्स बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। आपकी कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, तो सामने भी कोई भी कंपनी रहे, तो इट इज इजी कि उनको भी एक ट्रस्ट वर्दीनेस आ जाता है। तो इंटरमीडिएरी अगर बीच में से हट जाते हैं, तो अल्टीमेटली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है दोस्तों? तो फार्मर्स एंड मार्केट, ये दोनों का एक दुआ है। उसकी वजह से बीच का जो प्रॉफिट है वो सारा कंपनी में ही रहेगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट रहेगा, तो वो अल्टीमेटली किसको जाएगा? वो सिर्फ प्रोड्यूसर को ही जाएगा। जो भी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाती है, माल बेच के, अपना सेल ये करके या प्रोसेस का वैल्यू एडिशन करके, वो सारा शेयर प्रॉफिट अपने मेंबर्स को ही दिया जाता है। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे, तो उसमें हमें अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलती है, तो हम एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, एआई टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। अभी काफी सारे फार्मर्स इंडिया में एक एआई बेस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती कर रहे हैं दोस्तों। हमारा सेपरेट से क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा। समझ लो कि कोई भी परचेस हम बल्क में कर रहे हैं, तो वो परचेस का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक होना चाहिए। हमारी कंपनी का एक ब्रांड मिलना चाहिए, उसका ब्रांड रिकॉग्निशन होना चाहिए, तब मार्केट में आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे कि डीमार्ट, अभी डीमार्ट का समझ लो कि 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो उनका क्यों है इतना टर्नओवर? बिकॉज देर इज अ वे। ओके, एक उनके पास सेपरेट से अलग अलग डिपार्टमेंट है हर एक चीज करने के लिए, और उसके एक्सपर्ट्स है उनके पास। कोई भी चीज समझ लो कि एक फार्मर सीड्स परचेस करने के लिए गया, व्हाटएवर प्रोक्योरमेंट इनपुट्स परचेस करने के लिए गया, तो वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का परचेस कर सकता है, इसके ऊपर क्या। बट वही अगर 10 फार्मर, हर एक का 10-10 एकड़ का खेती है, तो 100 एकड़ के लिए अगर वो किसी के पास भी जाता है, तो आप देखो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है। उसके पास एक अलग से बार्गेनिंग पावर आ जाती है। तो आपको वो सामने वाला वेंडर आपको कैश डिस्काउंट दे देगा, वॉल्यूम डिस्काउंट दे देगा, उसका सेल डिस्काउंट भी आपको दे देगा। तो आपको काफी सारी जो इनपुट्स है वो कम कॉस्ट में मिलेंगे, क्योंकि आप एक साथ होके उसके पास यूनाइटेड जा रहे हो, यूनाइटेड होके जा रहे हो। अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है दोस्तों? अगर आप
मेंबर बन जाते हो कलेक्टिव, तो आपको शेयर्स मिलते हैं, राइट? तो आपका जो भी ये रहता है ना लाइबिलिटी, तो इट इज लिमिटेड टू शेयर्स ओनली। तो आप जितने शेयर्स होल्ड करते हो, आपकी लाइबिलिटी बस वहां तक ही रहती है। जो भी अगर समझ लो कि कोई कंपनी में बाय एनी चांस अगर दूसरा कुछ ये हो जाता है, तो वो आपके पर्सनल असेट्स पे कुछ ये नहीं आता, ओनली लिमिटेड टू योर शेयर्स। अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट टाइम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक फार्मर के लिए कॉम्पिटिटिवनेस कम करी है। मतलब इसको जो भी मेंबर्स है वो एक्ट के तहत दिए गए हैं कि वो सिर्फ फार्मर्स ही रहेंगे। पहले हमारे इसमें स्टेट में फार्मर्स के लिए और किसानों के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छा चला था, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आज भी कोऑपरेटिव बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरे बिजनेसेस जो है उनके लिए एलएलपी इन कंपनी है, फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है, उनके लिए लिस्टेड कंपनी भी है। बट अगर आप इसका ये देखोगे फार्मर प्रोड्यूसर का, तो इसमें सिर्फ किसानों के लिए ही एंट्री है। जिसके पास 7/12 नहीं है या जो किसान नहीं है उसको इसमें एंट्री नहीं है। तो सोचो दोस्तों, जो 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, इसमें सिर्फ जो फार्मर मेंबर है उनको ही एक कॉम्पिटिटिवनेस का फायदा हो जाता है। एंड इट इज अ हाइब्रिड मोड, मतलब आपको कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो एक आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिल जाता है, एट द सेम टाइम आपको एक कोऑपरेटिव का भी म्यूचुअल बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डीमार्ट को, कई सारी कंपनीज ने डीमार्ट के साथ एग्रीमेंट किया है। इसलिए क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कोई नॉर्मल दुकानदार है, उसके पास अगर आप कुछ भी चीज लेने के लिए गए तो उससे ज्यादा डिस्काउंट तो ये बड़ी कंपनीज दे रहे हैं। क्यों ये पॉसिबल है? बिकॉज द वॉल्यूम। अगर इवन आप चाइना प्रोडक्ट का भी देखोगे, दे आर वर्किंग ऑन वॉल्यूम। वो इतने कम प्राइस में वॉल्यूम की वजह से परचेस कर पा रहे हैं कि जो दूसरे इंडिविजुअल्स है उनके कंपटीशन कर नहीं पा रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका परचेस कॉस्ट एकदम रिड्यूस हो रहा है। उनके सेलिंग के लिए उनको अगर कम प्राइस में कोई भी चीज मिलती है तो उनको सेलिंग के लिए भी उनको अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, तो कॉस्ट भी बीच में की बच रही है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर अचीविंग टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़ इन अ ईयर एंड अर्निंग गुड्स प्रॉफिट। तो ये जो इकोनॉमिक स्केल का बेनिफिट है, ये अपने कंपनी को भी हो सकता है एज अ यूनाइटेड। और एक बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दूसरी कंपनी एलएलपी फॉर्म अगर रहता है या प्राइवेट लिमिटेड रहता है, उसमें डायरेक्टली टैक्सेशन के ये है। बट गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अगर मतलब इसमें क्राइटेरिया है थोड़े, अगर 100 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो एटीपीए में भी आपको बेनिफिट दिए हैं, मतलब टैक्सेशन के भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। बट दोस्तों इसमें सब्जेक्ट टू मैट, ओके, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा टैक्सेशन के। बट यस, एक गवर्नमेंट के थोड़े बहुत ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी कुछ टैक्सेशन के लिए भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि सेक्शन 80 है। अभी दोस्तों क्या होता है, समझ लो कि अब हम एकत्र तो आ रहे हैं, बट हम एकत्र यूनाइट होने के बाद हमें कुछ डिसीजन लेने के लिए अधिकार मिलता है या नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इक्वल वोटिंग राइट के कंसेप्ट है, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों। तो जो भी डिसीजन लेना हो, तो कोई भी अगर समझ लो 100 मेंबर्स हो तो हर एक का एक एक वोट, ऐसे वोटिंग राइट भी एक इक्वल हो जाता है, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपने देखा कोई दूसरी अगर कंपनीज रहती है लिस्टेड कंपनी, उधर शेयर सिर्फ हम होल्ड करके ज्यादा होल्ड करके बोर्ड हम ये करते हैं, कोई लोग काबिज कर लेते हैं, बराबर। तो इसमें ऐसे नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही एक स्टेप्स लिया है कि इसमें सब गरीब से गरीब किसान को भी उसका एक वोटिंग राइट रहना चाहिए। अभी समझ लो कि हमने 10 मेंबर ही आके पहले ये किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, बट क्या इसमें मेंबर्स उतने रहेंगे? नहीं दोस्तों। तो इसमें कैसे है कि देर इज नो लिमिट ऑफ मेंबरशिप। तो फार्मर ये मतलब बहुत ही अच्छा है, इसमें कलेक्टिव स्ट्रेंथ आप कितना भी बढ़ा सकते हो। आप इसमें 100 200 1000 कितने भी मेंबर्स कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी का।
अभी अगर आप इसमें ये सारा बेटर एफिशिएंसी से ये डिराइव करते हो तो आपको बेनिफिट तो मिलने ही है, बिकॉज प्रोक्योरमेंट से लेके रॉ मटेरियल का अल्टीमेट कंज्यूमर की डोर स्टेप तक सारा जो ये है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी देखने वाली है। जो भी प्रोड्यूसर्स है एंड कंज्यूमर है, तो उन दोनों के बीच में सिर्फ काम जो करेगी वो एफपीसी करेगी, तो बेटर इफिशिएंसी के साथ काम होता है। कंपनी अपने प्रोड्यूसर्स को एजुकेशनल और टेक्निकल सर्विसेज भी दे सकती है, तो वो एक अपना क्वालिटी कंट्रोल रख के ब्रांड भी वैल्यू कर सकते हैं, अपना गुडविल भी कर सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। एज अ कंपनी रजिस्टर्ड अगर आप होते हो तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो कंपनी मेंबर्स का, एंड जो भी आपका प्राइमरी प्रोड्यूस है उसको भी आप इंश्योरेंस के साथ रिस्क लॉस करने के लिए इंडेमनीफाई कर सकते हो। अभी दोस्तों गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसानों के लिए कुछ तो एक सपोर्ट रहे, इसलिए काफी सारे मतलब स्कीम्स है। तो मैं एक सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा एक दो स्कीम ही, डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जो स्मॉल एग्री एंड बिजनेस कंसल्ट टीएम है एसएफएसी, उसके थ्रू भी आपको इक्विटी ग्रांट मिलती है। 10 लाख तक की इक्विटी ग्रांट आपको मिल सकती है। आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर लोन के लिए भी ये मिलता है, गारंटी मिलती है। बट दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अगर ओनली अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है, सब्सिडी है करके अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ऐसे मत करो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपके पास एक विजन रहना चाहिए, आपके पास एक बिजनेस माइंडेड प्रॉपर प्लान रहना चाहिए, आप क्या बिजनेस करने वाले हो। ये कोई भी मार्केट में हम अभी देखते हैं, बहुत जनों को बोला जाता है कि फार्म प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर कर दो और ये स्कीम मिलेगी, ये इतना सब्सिडीज मिलेगा। बट दोस्तों उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, आपको बिजनेस चलाना पड़ता है 1-2 साल 3 साल, वो रन करना पड़ता है, आपकी एक्टिविटी क्या आपका ऑडिट करना पड़ता है, आपका आईटीआर रहे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहे, ये सब कुछ उधर सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये स्कीम्स आपको मिलती है। बट यस, इफ यू आर रनिंग गुड बिजनेस तो आपको ये सारे बेनिफिट 100% आप ये कर सकते हो। अभी दोस्तों फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और एफपीओ एक ये दोनों भी सिमिलर ही है इसके बेनिफिट्स, बट इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ये है चेंजेस है, या हम उसको थोड़ा ये कर सकते हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है ये लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो स्टेट एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये उनका इसके अंदर रजिस्ट्रेशन रहता है। और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है दोस्तों, इनका कंपनीज एक्ट 1956 एंड अमेंडेड एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होती है, एंड इट इज अ सेंट्रल प्रोसेस। जो भी एफपीओ है मैक्सिमम एफपीओ के लिए वो लोग जाते हैं जिनको सिर्फ स्टेट में ही बिजनेस करना है, तो विद इन स्टेट के अंदर एफपीओ का ज्यादा ये चल जाता है। आपको अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए जाना है, तो अगर इंटर यूनियन ऑफ इंडिया में आपको बिजनेस करना है तो आप एफपीसी के लिए जाइए। अगर आप मेंबर्स की बात करोगे तो एफपीसी में आप इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है, या प्रोड्यूसर कंपनीज और ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर। वैसे एफपीओ में इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंबर हो सकती है। अभी शेयर्स की अगर बात करोगे तो एफपीओ में तो नॉन ट्रेडेबल रहते हैं, एफपीसी में भी सेम है, आप ये शेयर बेच नहीं सकते, बट यस ट्रांसफर जरूर कर सकते हो फार्मर्स को। अभी समझ लो कि आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट भी कर दी, तो हाउ व्हाट अबाउट फंड्स। तो बिजनेस चलाने के लिए तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पहला फंड कंपनी के लिए अगर आ सकता है तो वो आता है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन के साथ। समझ लो कि 10 मेंबर है, तो हर एक मेंबर 10-10 हजार भी पूंजी जमा करता है, तो 1 लाख का एक कैपिटल आके खड़ा हो जाएगा आपके बैलेंस शीट में, तो आप उधर से स्टार्ट करते हो आपका बिजनेस। हो सकता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी मिले ऑन बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड योर प्लान्स। आप बैंक लोन भी ले सकते हो दोस्तों फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है तो सारे डॉक्यूमेंट बेसिस पे आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा, उससे भी आप फंडिंग रेज कर सकते हो।
एंड जैसे आपके ऑपरेशंस चालू हो जाते हैं, आप प्लांट सेल करते हो, जो भी एक्टिविटी प्रोसेस करते हो, तो इंटरनल रेवेन्यू भी आपके इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुए कि ये पीओ क्यों करना है, क्यों करनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं कि अगर करना है तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या हमें पूर्तता करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए 10 मेंबर होना जरूरी है और वो सारी फार्मर्स होने चाहिए, और 10 मेंबर में से 5 डायरेक्टर रहेंगे। अभी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे हमें एपीसी इनकॉर्पोरेशन के लिए। जो भी 10 मेंबर है सबके पैन कार्ड लगेंगे, सबके आधार कार्ड लगेंगे, बैंक स्टेटमेंट एक आपको सबमिट करनी होगी। बट दोस्तों ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये 1 मंथ की चाहिए और वो भी लेटेस्ट चाहिए। समटाइम्स क्या हो जाता है, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन का डिसीजन लिया 1 अगस्त को और इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन करने में जाता है 1। आपका बैंक स्टेटमेंट अगर ओल्ड हो जाता है तो बाद में ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो जब भी आप पूरा प्रोसेस होगा उस टाइम आप बैंक स्टेटमेंट लास्ट में अपडेटेड वाले देने चाहिए। इस केस में जो भी आप पैन कार्ड आधार कार्ड सबमिट करोगे तो वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आधार कार्ड का जो ये मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी आधार नंबर को, फोन नंबर को लिंक होना चाहिए। आपका जो भी ये रहेगा पासपोर्ट साइज फोटो आपको एक सबमिट करनी होगी। हर एक मेंबर का ना दोस्तों फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस रहना जरूरी है, बिकॉज हमने अभी काफी सारी एपीसी इनकॉर्पोरेट करी है, तो नॉर्मल विलेज में किसानों का ईमेल नंबर, ईमेल आईडी नहीं रहता, तो वो एक बार हमें बनाना ही पड़ता है। अभी दोस्तों ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इसमें एक फार्मर सर्टिफिकेट भी कंसेप्ट है। उसका एक सर्टिफिकेट रहता है जो अपने तलाटी या तहसीलदार या तालुका कृषि अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको सर्टिफाई करके मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन रहती कि ये बंदा यहाँ का है और इसकी इधर इधर खेती है, मतलब ये फार्मर है, बस वो डिटेल्स उसमें रहती है। एक उसके साथ आपको एक 7/12 भी देना होगा या कुछ जगह उसको खतौनी भी बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं कि आप फार्मर हो। अभी ये तो हुए इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अभी समझ लो कि आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उसका आप बिजनेस चलाओगे तो उसका ऑफिस भी तो रहेगा, तो वो ऑफिस एड्रेस आपको देना पड़ता है। अगर आप लाइट बिल भी देते हो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये किसी डायरेक्टर या मेंबर के अगर नाम पे है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनओसी उनसे ले लो और वो एनओसी सबमिट करो। अगर अदरवाइज अगर आपने रेंटेड प्रीमाइस लिया है और वहां से आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट फिर सबमिट करना होगा। उसका थोड़ा कॉस्ट आ जाएगा, बट यस उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन 100% हो जाएगा। आपको ये डिसाइड होना करना पड़ेगा कि कंपनी में आपको स्टार्टिंग में कैपिटल कितना रखना है। तो आप कैपिटल रख सकते हो 50,000 रख सकते हो, 1 लाख रख सकते हो। अभी उसमें सिर्फ दोस्तों आप ये करना ऑथराइज कैपिटल थोड़ा ज्यादा रखना पहले ही, क्योंकि क्या होता है बाद में फिर से अगर वो चेंज करना हो आपको, ओके, तो उस टाइम अलग से आपको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल लेट सी आपने 5 लाख रखा। अगर आपको ये करना है कि आपके मेंबर के पास ओनली 1 लाख रुपीज है तो आप 1 लाख रुपीज ही डिपॉजिट कर सकते हो, तो उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे। और शेयर होल्डिंग तो ये म्यूचुअली डिसाइड होगी, वैसे आप रख सकते हो। अभी दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपको डीएससी करना जरूरी है। डीएससी क्या रहता है दोस्तों ना, डिजिटल सिग्नेचर, मतलब इट इज लाइक अ पेन ड्राइव टाइप टोकन रहता है। अगर दोस्तों आप आईटीआर फाइल करते हो ना तो आपने देखा होगा उसमें एक ई वेरिफिकेशन का कंसेप्ट है, आपको आधार ओटीपी आता है, राइट। तो उसी टाइप का एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जो भी कंपनीज है उनका वेरिफिकेशन करने के लिए तो हर एक मेंबर की डीएससी होना जरूरी है। तो ये डीएससी निकालने के लिए एक प्रोसेस रहता है, 15-20 मिनट का रहता है। उसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है,
आपके हाथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। और ये इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि कोई मतलब जेन्युइन बंदा ही ये वेरीफाई करे। तो आपको ये डीएससी निकाल के लेनी पड़ती है। डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद जो भी डायरेक्टर्स है, हम 5 डायरेक्टर रखने वाले हैं एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में मिनिमम 5 डायरेक्टर्स। तो एमसीए में रूल है कि डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो आपको डीन नंबर कंपलसरी निकालना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो 5 कंपनी का हम डायरेक्टर की कंसेंट फॉर्म फाइल करते हैं और उसके बाद उनका डीन नंबर के लिए भी एप्लीकेशन करते हैं। तो एक बार डीएससी हो जाए, डीन हो जाए, उसके बाद अपन जाते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए। तो दोस्तों नेम रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कोई भी कंपनी का, समझ लो कि बजाज रहे या रिलायंस रहे, ऐसी कोई भी अगर आपने नेम या कोई वर्ड आपके कंपनी के इसमें नाम में डाला तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो आपको ऐसे एक यूनिक नेम निकाल के रखने होंगे कि आप पहले नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे एमसीए साइट पे, और वो नेम अप्रूव होगा, माइट बी 3 days to 5 days, और वो अप्रूव होने के बाद आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाओगे। अभी दोस्तों नेम रिजर्वेशन में एक ये रखना, हर एक नेम में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये वर्ड रहेगा। अगर आपको पहचाननी है कि मार्केट में अगर आपके पास कोई बंदा आया बिजनेस करने के लिए, तो उसके कंपनी के पीछे अगर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिखा है तो समझ लेना कि ये इट इज एफपी, एफपी से। अगर एलएलपी लिखा है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो इट इज ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर ओनली लिमिटेड लिखा है तो इट इज लिस्टेड कंपनी। वैसे प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये एक वर्ड अपने एफपीसी में हमेशा आ जाएगा। तो आपको नेम रिजर्वेशन पहले ही लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये होने के बाद आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी दोस्तों ड्राफ्ट होगा। अभी इसमें क्या रहता है ना, मेमोरेंडम में जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है, बाकी शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, ऑब्जेक्ट क्लॉज रहेगा, वो हमें सब कुछ देना पड़ता है इन डिटेल। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके बायलॉज रहेंगे कि कंपनी कैसे चलने वाली है हमारी, उसमें रूल्स क्या है, एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल्स है, मेंबर्स के लिए क्या सेफ गार्ड्स है। तो एक बायलॉज टाइप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप ले सकते हो। अभी ये सब कुछ ये करने के बाद दोस्तों आपको, आप अगर एप्लीकेशन फाइल करते हो तो नॉर्मली 15 to 20 days में आपकी कंपनी अप्रूव हो जाती है। इसमें कभी कभी वेबसाइट का अगर प्रॉब्लम हो तो पकड़ के चलो थोड़ा बहुत एक 4-5 दिन का ऊपर नीचे, बट एक 10 से 15 दिन का ले सकते हो टाइम। कंपनी जब आपकी दोस्तों आप ये हो जाती है इनकॉर्पोरेट, तो आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन मिलता है, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको आपके मेल पे आ जाता है। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में डिटेल रहती है कि आपकी कंपनी मतलब कब से स्टार्ट हुई, उधर लोकेशन कौन सा लोकेशन है, और ये आपके ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है। और एक दोस्तों अगर आप देखोगे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके साथ ही पैन नंबर भी आपको मिलेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर कंपनी का, बिकॉज कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड इट इज सेपरेट एंटिटी। तो जैसे आपका इंडिविजुअल का पैन है वैसे कंपनी का भी पैन नंबर मिलेगा। आपको टैन नंबर भी मिलेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अब ये टैन नंबर क्यों दोस्तों, तो इट इज एज लाइक मैंने कहा ये भी कंपनी है, तो इसमें भी अगर कुछ अगर टीडीएस होता है एम्प्लॉयज का रहे या प्रोफेशनल्स का रहे या एनी पेमेंट्स, तो उसका टैक्स डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो उसके टीडीएस रिटर्न आते हैं, तो वो टीडीएस रिटर्न के कंप्लायंस के लिए आपको टैन नंबर जरूरी है। दोस्तों जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो उस टाइम भी ऑप्शन रहता है आपका पीटीसी, पीटीआरसी, ईपीएफ, एनईएसआईसी, उसके भी ये रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, पीटीसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेल में आता है, उस टाइम अगर आपने वो इग्नोर किया तो बाद में ये रिट्राइव करना काफी दिक्कत वाला हो जाता है। पीटीसी का दोस्तों कंप्लायंस ईयरली रहता है, का आपको ईयर में एज अ कंपनी 2500 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड पीटीआरसी फॉर आवर एम्प्लॉयज, जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उन वो अगर पीटी उनका हम डिडक्ट कर रहे तो वो हम पे करेंगे।
अभी डायरेक्टर्स जब हम ये करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उनका डीन नंबर भी आपको एक अलग से यूनिक नंबर मिल जाता है हर एक डायरेक्टर के लिए, और उनके डिजिटल सिग्नेचर भी मिल जाते हैं। तो नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर सारे 10 मेंबर्स के हमारे पास रहते हैं। तो दोस्तों पोस्ट इनकॉर्पोरेशन समझ लो कि अपना इनकॉर्पोरेशन हो गया। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ये जो मैंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपके हाथ में आ गए। तो क्या उधर ही सब कुछ हो गया? एक्चुअली क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद तो कुछ कंप्लायंसेस हमें गवर्नमेंट ने पहले ही दे के रखे कि वो उसी टाइम में करने होते हैं, आप बिजनेस करो या नहीं करो। जैसे कि समझ लो कि आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अभी बैंक अकाउंट ओपन करके जो भी आपने कमिट किया था मेंबर्स का कैपिटल, वो आपको उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस INC 20A फॉर्म होता है, वो विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको वो फाइल करना ही पड़ता है। और उसमें जो भी आप ये देते हो बैंक में, आपने मेंबर्स का शेयर कैपिटल डिपॉजिट किया, वो आप उसमें डिक्लेरेशन के साथ देते हो। और ये कंपलसरी है दोस्तों, अगर आपने ये नहीं किया तो पेनल्टीज चालू हो जाती है। वैसे ही आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही लेनी पड़ती है। साल में एज अ कंपनी है तो आपको 4 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है, और एक क्वार्टर में तो एटलीस्ट एक होनी चाहिए, तो 120 डेज का गैप भी आ जाता है। आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी आपको करना पड़ता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो ये जो कंप्लायंसेस है वो आपको करने ही है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अभी दोस्तों ऐसे कुछ कंप्लायंसेस रहते हैं जो ईयरली रहते हैं। समझ लो कि अभी डायरेक्टर से उनके डीन नंबर है, तो उनके लिए DIR3 KYC कंपलसरी है, और वो एनुअली आपको करनी पड़ती है। उसकी डेट रहती है 30 सितंबर। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर अगर आपका खत्म हो जाता है तो 30 सितंबर से पहले जिनके भी डीन नंबर है उनको DIR3 KYC करनी ही पड़ती है। DIR3 KYC मतलब एकदम सिंपल ये रहता है, आपको आधार बेस और DSC बेस OTP आते हैं, तो आप सिर्फ कुछ डेटा रहे तो वो अपडेट करके DIR3 आपका KYC कर सकते हो। अगर ये आपने किया नहीं तो 5000 रुपीज का पेनल्टी लगती है बाद में, ड्यू डेट के बाद। समझ लो कि कंपनी ने कुछ रिटर्न ऑफ लोन है या डिपॉजिट्स है एज ऑन मार्च, तो दोस्तों DPD3 एक रिटर्न रहता है, वो भी आपको फाइल करना पड़ता है। वो एनुअल रिटर्न रहता है, तो आपको 30 जून उसका ड्यू डेट रहता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी करना पड़ता है ADT1 फाइल करके। एंड 2 रिटर्न्स रहते हैं दोस्तों जो आपको MCA में फाइल करने पड़ते हैं, एक AOC4 और एक MJT7। मतलब सितंबर में 30 सितंबर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो विद इन 6 मंथ्स 180 डेज आपको AGM दिखानी पड़ती है, होल्डिंग AGM। और AGM होने के बाद तुरंत ही 30 डेज में आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट रहे, प्रॉफिट एंड लॉस रहे, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहे, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट, वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं विद इन 30 डेज। एंड MJT7 एक एनुअल रिटर्न रहता है, उसके लिए 60 डेज का टाइम दिया है, तो उसमें सारी आपकी बाकी डिटेल्स जाती है। तो ये तो हुए एनुअल कंप्लायंसेस। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, कुछ लाइसेंसेस भी ले सकते हो। मतलब MSME का उद्यम सर्टिफिकेट रहता है, वो आप एक ले सकते हो। उसका मतलब बेनिफिट ऐसे हो सकता है कि सेक्शन 43 भी गवर्नमेंट ने लाया है। गवर्नमेंट इज वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड कि जो भी जिनका टर्नओवर कम है MSME में है, उनका 45 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए। अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं होता है तो वो इनकम टैक्स में सारे वेंडर्स का डिसअलाउंस कर देते हैं, और उनको इंटरेस्ट भी लगती है। तो अगर आप उद्यम का सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको पेमेंट की श्योरिटी मिल जाती है विद इन 45 डेज। आप आपके कंपनी का शॉपैक भी ले सकते हो। अगर आपको एक्सपोर्ट में बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो ये कुछ अलग लाइसेंसेस भी आप ले सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर बात करें, सीड का है, फर्टिलाइजर का है, तो वो इंडस्ट्री के रिलेटेड समझ लो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट रहे, या सीड और फर्टिलाइजर का सेपरेट से उस अथॉरिटी से आपको ये लाइसेंस लेना होगा।
अभी दोस्तों अगर नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी में जो प्राइमरी प्रोड्यूस है उसका इनपुट से लेके आउटपुट तक आप काफी सारा इसमें बिजनेस आ जाता है। अगर हम नॉर्मली बर्ड्स आई व्यू में अगर कुछ ये करना चाहूंगा आइडेंटिफाई, तो उसमें प्लांट नर्सरी आ जाता है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स आ जाता है। समझ लो कि आप कोई सिर्फ नॉर्मल खेती की जगह मेडिसिनल हर्ब का आपको ये करना है, बिजनेस करना है, तो आप उसमें सिर्फ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी में वही बिजनेस कर सकते हो, दिखा सकते हो। आप उसके रिगार्डिंग सामने वाले कंपनी से एग्रीमेंट्स कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपका स्टॉक रहे, आपका स्टोरेज रहे, आप सब कुछ वो मैनेज कर सकते हो। आप नर्सरी का बिजनेस भी इसके अंदर दिखा सकते हो। आपके जो भी पल्सेस है, सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो उस एक्सपोर्ट का भी बिजनेस आप दिखा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोड्यूस, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस आप खेती से निकालते हो, वो सारा बिजनेस दोस्तों आप फार्म प्रोड्यूसर कंपनी में कर सकते हो। अभी ये करते करते दोस्तों कुछ एग्री रिलेटेड एक्टिविटी और डिपेंडेंट एक्टिविटी आप बोल सकते हो, जैसे कि डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, मशरूम फार्मिंग, बी कीपिंग, फिश फार्मिंग, ये बिजनेस है, ये भी कर सकते हो। अभी कोई लोगों का तो एग्रो प्रोसेसिंग का ये रहता है, सपना रहता है कि हम सिर्फ जो भी प्रोड्यूस आएगा उस पे प्रोसेसिंग करेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग, और वो उसी का बिजनेस करेंगे। तो जैसे कि आप कोई भी ये ले लो रॉ मटेरियल, उस पे कुछ तो प्रोसेस करो और फिर वो मार्केट में जाके बेचो। सीड और फर्टिलाइजर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्री कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन काम काम ही यही है कि जो भी इनपुट्स है वो इनपुट्स लेने हैं, और वही इनपुट्स सीड फर्टिलाइजर वो उनके कंपनी मेंबर्स को प्रोवाइड करने हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मुझे लगता है कि एक समअप में करता हूँ। हमने डिस्कस किया कि कंपनीज क्यों इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्यों हमने यूनाइटेड आना चाहिए, उसके बेनिफिट्स आपको बताए। आपको उसके साथ ही मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए। वो डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जो आपको क्या मिलने वाला है, हाथ में आने वाला है, फाइनल सर्टिफिकेट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और कौन कौन से टाइप के बिजनेस आप कर सकते हो, कौन से कंप्लायंस आपको ये है इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बताए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करेगी। मैं एक ही कहूंगा, एकता में है ऐसी शक्ति जो तोड़ सकती है बड़े बड़े से दम्भ, आओ एकता का मार्ग अपना कर, करे नवयुग का आरंभ। इतना बोल के मैं मेरा ये जो भी है थोड़ी इंफॉर्मेशन ये समअप करता हूँ। हमारे हमारे अगले वक्ता है श्री ज्ञानेश्वर बोडके सर। मैं सर का परिचय देती हूँ। सर ने साल 1999 से आधुनिक खेती को शुरुआत की है। इसमें सर ने मूलसी पुणे में 5 ग्रीन हाउस स्थापित किए हैं। सर ने नाबार्ड की सहायता से अभिनव किसान संघ की स्थापना की है। इसमें 300 किसानों का संघ स्थापित करके सर कार्य कर रहे हैं। सर 17 साल से एकात्मिक जैविक खेती और समूह द्वारा कृषि मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। इस कार्य में महिला बचत गट को साथ लेकर सब्जी, फल, दूध, औषधि पौधे इत्यादि का उत्पाद करके पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा, औरंगाबाद आदि शहरों में कृषि मार्केटिंग ऐप द्वारा हर घर तक जैविक उत्पाद पहुंचाते हैं। बोडके सर के कार्य में 1,56,000 किसान और महिलाओं को लाभ दिया गया है। यह सभी किसान भाई और बहनें सर के कार्य में जुड़े हुए हैं। इनका कार्य देखकर बोडके सर को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनमें नाबार्ड की तरफ से बेस्ट फार्मर क्लब नेशनल अवार्ड साल 2007 में मिला है। साल 2010 में रोटरी क्लब नेशनल पार्क, साल 2011 में डायरेक्ट मार्केटिंग अवार्ड, साल 2017 में वंदे मातरम पुरस्कार से सर को सम्मानित किया है। सर ने किसानों को खेती में मजदूरों का खर्चा कम कराने हेतु लघु मशीनरी बनाकर खेती का रास्ता आसान किया है। उसमें छोटा पावर टिलर, जानवरों के लिए जैविक खाद्य में हाइड्रोपोनिक फोडर यूनिट, बैटरी
ऑपरेटेड स्प्रे पंप और बायोगैस संयंत्र बनाए हैं। मजदूरों की टंचाई पर उन्होंने ड्रिप ऑटोमेशन पद्धति को निर्माण किया है। इनके कार्य के ऊपर काली माती नाम से मराठी फिल्म दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य में प्रदर्शित होने वाली है। मैं आज के वेबिनार में सर हमें किसान उत्पादक कंपनी द्वारा कृषि और औषधीय क्षेत्र में कार्य इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं RCFCWR की तरफ से सर को विनती करती हूँ कि वे हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बोडके। हम लोग 25 साल से अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का समूह चलाते हैं, जो शुरू में नाबार्ड में रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि विभाग के साथ हम लोग काम करते हैं। 15-20 किसानों का एक ग्रुप तैयार करके, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ये, ग्रुप तैयार करके हमने सबने गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किया और कोऑपरेटिव बेस पे हर महीने को 15 दिन को मीटिंग करके हम लोग मीटिंग में क्या उत्पादन, क्या प्रोडक्शन करने का है, कौन से कस्टमर को क्या बेचने का है, गर्मी है, बारिश है, ठंडी है, ये सब सीजन में कंट्रोल करके हर घर में हमें खाना खिलाना है, उसके बारे में हमेशा ग्रुप में बातें होती है। ये ग्रुप होते हैं 15-20 किसानों के छोटे छोटे ग्रुप। अभी 350 से ज़्यादा ग्रुप ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने तैयार किए। शुरू में 15-20 किसान होते हैं, अभी 500, 600 किसान भी ग्रुप में काम कर रहे हैं। ग्रुप में काम क्या करते हैं, तो सब्जी, धान, मिल्क और फ्रूट का प्रोडक्शन करना, और वो प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग से लेकर क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग करके होम डिलीवरी देना वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिखाया। और वो अभी मार्केटिंग का काम औरतें कर रही है और ग्रोइंग का काम किसान लोग कर रहे हैं, हम लोग फार्मर लोग कर रहे हैं। इससे किसान के घर में तो रोज पैसा आना शुरू हो गया। दूसरा, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो घर में औरत है, उसके भी हाथ में रोज का पैसा आना शुरू हो गया। यही प्रॉब्लम हमारे देश में आज तक, एक भी किसान को घर में रोज पैसा नहीं आता, इसलिए किसान सुसाइड करते हैं, बैंक लोन नहीं देती, बहुत बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि पैसा ही नहीं आता। आज तक पूरा अनाज उगाते हम लोग किसान, लेकिन उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और सब उसका खर्चा जो है, वो सब खर्चा भी नहीं निकलता मंडी में अगर बेचने गए तो। इसके लिए 2000 में हमने देखा कि ये मंडी में जाकर कुछ नहीं होगा, मंडी तो शायद किसानों के लिए नहीं है ये मंडियाँ। तो हमने ऐसा तय किया कि मंडी में हम बेचते 10 रुपए किलो से कोई भी चीज, वही चीज हथगाड़ी वाला या मिडलमैन जाकर घर घर में बेचता है 40 रुपीज किलो। किसान को 10 रुपए किलो और खाने वाले को 40 रुपीज, 40 रुपए किलो। मैं बोला क्यों ना हम लोग किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। लेकिन उस टाइम 20-25 साल पहले ये रूल नहीं था डायरेक्ट मार्केटिंग का। बाद में 2013 में महाराष्ट्र में रूल आया डायरेक्ट मार्केटिंग। वो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है किसान अपना उपज निकालेगा, एक पैक हाउस बनाएगा 15-20 किसानों के लिए, एक छोटा सा 600 स्क्वायर फीट का। वो पैक हाउस में हफ्ते में 2 दिन सबका मटेरियल इकट्ठा करेगा, सब्जी, धान, मिल्क, फ्रूट, उसको क्लीनिंग करेगा, ग्रेडिंग करेगा और उसका पैकिंग करेगा हमारे ब्रांड से, अभिनव फार्म फ्रेश जैसे। और उसके ऊपर हमारा ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम रहेगा। वो सब करके हमने होम डिलीवरी देना शुरू किया। डायरेक्ट 10 रुपए की चीज 40 रुपीज में बेचनी लगे, मिडलमैन नहीं है बीच में, हमारी नहीं, कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं, और पूरा के पूरा जो प्रॉफिट है वो हमारे घर में आना शुरू हो गया। फिर पता चला क्यों नहीं करता गवर्नमेंट ये सब। अगर गवर्नमेंट ये करते तो एक भी किसान सुसाइड नहीं करेगा, एक भी किसान भूखा नहीं रहेगा। मिडलमैन कितने अमीर बने, मिडलमैन इतने अमीर नहीं होने चाहिए। एक्चुअली सब लोग अमीर होना चाहिए, लेकिन किसान भी अमीर होना चाहिए, सिर्फ किसान छोड़कर बाकी सब लोग अमीर होना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए हमने छोटे छोटे ग्रुप में मार्केटिंग करवाना शुरू किया, मार्केटिंग करना शुरू किया। मार्केटिंग करना लगा तो हम पूरा मार्केटिंग ही करते थे। फिर खेती में काम के लिए लेबर नहीं है, लेबर के दिक्कतें आने लगी। फिर हमारे जो लड़के हैं, जो लड़कों का हमने इंजीनियर बनाया, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बनाया, और उनको छोटी छोटी मशीनरी बनाने को बोला खेती करने के साथ साथ, क्योंकि लड़कों का करियर करने के लिए उनको नौकरी ढूंढनी थी।
नौकरी तो आज इंजीनियर को भी 17-18 हजार रुपये पेमेंट मिल रहा है। मतलब नौकरी में तो उतना पैसा नहीं है, ये आप सबको मालूम है। और नौकरी में जिसके पास जमीन नहीं है वो नौकरी करेंगे, लेकिन जिसके पास जमीन है वो क्यों नौकरी करेंगे? फिर जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? आज एक जगह अगर भरनी है इंजीनियर की तो 3-3 हजार लड़के इंटरव्यू के लिए आते हैं। इतना नौकरी का प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए हमने लड़कों को छोटा मशीनरी बनाने को बोला। 15 लेबर का काम 500 रुपए के पेट्रोल में कर रहे हैं, ऐसी मशीनरी छोटी छोटी बनाना शुरू किया। किसान के लड़के, ये किसान के लड़के गारंटेड मशीनरी में अच्छा काम करेगा और बहुत सस्ता। बड़ी बड़ी कंपनियां 1.5 लाख में बेचती है, हम 45,000 में बेचते हैं। पैसे भी कम होने चाहिए, किसानों के पास उतने पैसे ही नहीं है 8 लाख 10 लाख का ट्रैक्टर खरीदे। बहुत दिक्कतें आती है। इकट्ठा होकर भी करेंगे तो उसका भी रिपेमेंट नहीं करते, सब इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंट्री में कोल्ड स्टोरेज बनाए थे बहुत सारे करोड़ों रुपए के, सब कोल्ड स्टोरेज बंद है। गवर्नमेंट को भी डूबाया, लोगों ने पैसा नहीं भरा क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ माल का कभी रेट ही नहीं बढ़ा। ऐसे छोटे छोटी दिक्कतों में हमने देखा था कि ऐसा चल रहा है। पिताजी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, बहुत काम करते थे, लेकिन कभी पैसे नहीं मिलते थे। मैं बोला पैसे कमाने का यही तरीका है, अपना उपज खुद ही करो, खुद काम करो और खुद ही बेचो, तो नहीं पैसा मिलेगा। हमारे लड़के, पढ़े लिखे लड़के नौकरी ढूंढने से अच्छा है घर में मार्केटिंग का काम करेगा। ये सब सिस्टम में हमने काम शुरू किया। छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम तो सब ग्रुप में आते ही है। जैसे अभी सर ने भी बोला, एफपीसी को भी प्रॉब्लम आते हैं, एफपीओ को भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा काम हम लोगों ने शुरू किया। फिर सब्जी देना शुरू किया, दूध देना शुरू किया, धान देना शुरू किया, फ्रूट देना शुरू किया। लोग बोले बुड़के जी बहुत अच्छा बास्केट आप दे रहे हैं। 25 साल पहले मैंने पहला बास्केट दिया है। अभी ये बहुत सारे बास्केट ऑल ओवर इंडिया में तैयार हो रहे हैं, लेकिन 25 साल पहले किसी का कोई बास्केट नहीं था। पहला बास्केट अभिनव फार्मर्स क्लब ने पूना में डॉक्टरों को बेचना शुरू किया था, और तभी से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी बास्केट का कंसेप्ट शुरू है। बहुत लोग बाहर कंट्री का ही नाम लेते हैं, लेकिन किसानों के ग्रुप के नहीं नाम लेते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। बाहर कंट्री के नाम लिया तो थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा आदमी, ऐसा लोगों का सब सिस्टम होता है। वैसे ही सिस्टम ने हमने 25 साल से ये देखा। बहुत गरीब है किसान, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग। और वो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए इतना सही काम होता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ साथ हमने इनपुट भी एक साथ परचेस किया। अभी यहाँ पे अभ्युदय बायोटेक करके एक कंपनी है, जो आयुष मंत्रालय के साथ भी जुड़े हुए हमारे साहेबराव मेंगड़े साहब है, उनसे हम लोग परचेस करते हैं मटेरियल। तो उसमें 25-30% कम रेट में हमें देते हैं, क्योंकि एक साथ परचेस करना पड़ता है। सीड्स हम लोग ईश्वेद बायोटेक से परचेस करते हैं, 50% कम रेट में सीड्स भी मिलता है। ये इकट्ठा आने के फायदे अभी भी सर ने बोला, सीए सर ने, से बहुत अच्छा है। इकट्ठा आकर हम लोग बहुत पैसा बचा सकते हैं, और पैसा बचाना ही प्रॉफिट कमाना, ये सिस्टम है। तो फिर इसमें हम सब्जी सब देने के बाद लोग बोले कि सर जी अब अच्छा खाना खिलाते हैं बिना केमिकल वाला, तो आप हमें मेडिसिन क्यों नहीं खिला रहे? अच्छा, फिर मोकाट साहब के साथ हमारी बात हो गई, मेंगड़े साहब ने मिलवाया, और मोकाट साहब और हमने मिलकर ऐसा तय किया है कि हर किसानों के पास सब्जी होनी चाहिए, धान, मिल्क, फ्रूट, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन को रोज 3 टाइम खाना है। और खाना तैयार करने का काम मशीन में नहीं होगा, सिर्फ किसान करेगा, और जमीन में ही होगा, बाकी किधर नहीं होगा। ये किसी को अलग बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम क्यों ना मेडिसिन भी उनको अच्छा वाला मेडिसिन देंगे। इसके लिए हर्बल गार्डन भी हम लोग करेंगे। अभी पूना में डिस्ट्रिक्ट में हमने 1000 किसान चुने हैं, जो एक एक गुंठे में 1000 स्क्वायर फीट में हर्बल गार्डन करेंगे, और पूना के सब कस्टमर को अच्छा खाने के साथ अच्छा मेडिसिन भी हम लोग खिलाने वाले। तो उससे भी थोड़ा सा पैसा किसानों को मिलेगा। और हम खुद बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, 5 लाख 10 लाख। तो उसके लिए भी हम लोग खुद के घर में अगर मेडिसिनल प्लांट्स है तो उसका काढ़ा बनाकर पियेंगे, उसके पत्ते खाएंगे, तो बीमारियों का बहुत बड़ा खर्चा भी कम होगा, हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। क्योंकि किसान 100 साल तक जिंदा रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसान का। किसान ने नहीं उगाया तो लोग कुछ नहीं खा सकते। इसलिए जो राहुल, ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, आरसीएफसी है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि किसान और हम लोग मिलकर उगाएंगे तो 140 करोड़ पॉपुलेशन को अच्छा जिंदा रखेंगे। वही काम हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं। मेडिसिनल में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेडिसिनल में जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं
उनको हॉस्पिटल में एकदम 5 लाख 10 लाख भरना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत आती है, उनके पास पैसे नहीं होते, फिर जमीन बेचते, घर बेचते, और वो जाकर भी आदमी बचता नहीं है, आदमी जाता ही है, पूरा फैमिली बर्बाद होता है। फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट कितने लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। इसीलिए सेल्फ सस्टेन करना है तो कोई भी चीज किसानों ने खुद ग्रोइंग करनी चाहिए। और किसानों ने खुद काम करने में क्या प्रॉब्लम है? किसानों ने खुद काम करना चाहिए, काम से हेल्थ अच्छी रहती है। जो किसान काम नहीं करते, सिर्फ बैठकर काम करते हैं, वो कोरोना में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया। बैठकर काम, जो काम करने वाले थे किसी को कोरोना नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। फिर अलग अलग टाइप के टर्मरिक का भी प्लांटेशन होता है हमारे पास, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं हमें हल्दी भी चाहिए, तो हल्दी हम गीली हल्दी बेचते हैं, पाउडर नहीं बनाते। तो गीली हल्दी, पीली वाली हल्दी है, वो लोग घर में खाने के लिए ऐसा खीस के सब्जी में डालकर खाती है, वो 200 रुपये किलो से बेचते हैं। व्हाइट वाला टर्मरिक है, अम्बे हड़द, अम्बे टर्मरिक बोलते हैं उसको, तो उसका स्किन के लिए ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होता है, स्किन के ब्यूटिशियन के लिए। तीसरा ब्लैक टर्मरिक है, जो कैंसर के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन बहुत अच्छा मेडिसिन समझकर लोग यूज कर रहे हैं। वो भी 1000 रुपये किलो से लोग खरीदते हैं, 250 रुपये पाव से। उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। तो ये सब छोटे छोटे, जैसे जैसे कस्टमर के डायरेक्ट प्रॉब्लम आए उसी हिसाब से हमने तैयार करते गए। आज हम 1,56,000 किसान ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। सब लोग 10-12 लाख रुपए 1 एकड़ 2 एकड़ में साल का कमा रहे हैं। क्या चाहिए? पैसा भी अच्छा मिलता है, पूरी फैमिली काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके पास कार है, छोटे छोटे घर भी बनाए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई झगड़े नहीं है किसी के साथ, कोई बीमारी नहीं है, मेडिसिन का भी बहुत खर्चे खर्चे कम है। तो ये सब दिक्कत में किसान क्यों नहीं ऐसा काम कर रहा है? मेरी गवर्नमेंट से भी सबसे विनती है कि आप इसके बारे में ज्यादा काम कीजिए। 100% सस्टेनेबल सिस्टम है, 100%। हर घर में अगर रोज थोड़ा सा पैसा है, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्चा ही नहीं होता। सब्जी घर की होती है, दूध होता है, घी होता है, पनीर होता है, हमें खरीदना भी नहीं पड़ता। अभी सोलर पंप बिठा है, लाइट बिल भी नहीं है। महाराष्ट्र शासन में तो 7.5 HP तक लाइट बिल भी नहीं, 5 साल तक आएगा। तो सब दिक्कतें, और गवर्नमेंट भी सब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन तो भी किसानों की हालत क्यों ऐसी है? उसका एक ही रीजन है, मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी में बेचते हैं तो लॉस में बेचना पड़ता है, घर में बेचते हैं तो 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्या चाहिए? फिर घर घर में बेचने में क्या प्रॉब्लम है? हफ्ते में 2 ही दिन मार्केटिंग करना है, रोज नहीं। रोज मार्केटिंग करोगे तो फिर काम के लिए भी आदमी नहीं है। एक तो गवर्नमेंट अनाज दे रहा है, गवर्नमेंट ये फ्री दे रहा है, वो फ्री दे रहा है, इसलिए कोई भी लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने देना चाहिए जिनको जरूरत है, लेकिन ये सब देकर किसानों को उद्ध्वस्त कर रहे हैं, ये पक्का फिक्स है। कुछ साल के बाद कोई आदमी नहीं मिलेगा, और किसान भी काम छोड़ देगा कि खेती का। किसान बोलेगा सर गवर्नमेंट आप ही जमीन ले लो, हमें पेमेंट दे दो, हम काम करेंगे। हमको जमीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन की दिक्कत से ही इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, जमीन की बहुत झगड़े हो रहे हैं, इसका इतना हिस्सा, इसका ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लॉस है इसलिए। तो मेरी आप सबसे विनती है कि किसानों के जो छोटे छोटे संगठन है, चाहे वो प्रोड्यूसर कंपनी हो या FPO हो, कुछ भी हो, सबको उसका मार्केटिंग का दाम मिलना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट थोड़ा सा मिलना चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट देने वाला सिस्टम कौन है? आज बोल रहे हैं कि FPC का बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो किधर प्रॉफिट दे रही है? वही प्रॉफिट में नहीं है। सब जो मिडलमैन है, दलाल, वही प्रॉफिट कमा रहा है। किसानों को बोलता है इतना बड़ा क्वांटिटी है तो थोड़ा सा सस्ता दे दो हमें, उल्टा ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गया, रेट कम हो गए। हम हमेशा शॉर्टेज करते हैं, इसलिए हमारा रेट 25 साल से गिर गए नहीं, रेट बिल्कुल। हमेशा 2-3 सब्जी का रेट कम होता है। हमारे पास 25 टाइप की सब्जी होती है, सबके पास 25-30 टाइप, तो 2-3 का कम होता है और 10-12 का बढ़ता है, तो हमें पता ही नहीं चलता किसका बढ़ गया और किसका कम हो गया। ये होना बहुत जरूरी है। तो मिक्स क्रॉपिंग में काम होना चाहिए, मेडिसिनल हर्बल में ये डिपार्टमेंट मोकाट साहब की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर सकती है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें उनका बहुत हेल्प होगा छोटे किसानों को, तो वो सब सिस्टम में काम होगा, और इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको काम ही नहीं है, वो अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, वो कोई नहीं खा रहा है अचार पापड़। तो उनको हमने काम दिया कि किसानों का सब्जी धान मिल्क फ्रूट इकट्ठा कीजिए, हफ्ते में 2 दिन क्लीनिंग ग्रेडिंग कीजिए और होम डिलीवरी दीजिए। होम डिलीवरी में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, उसमें से थोड़ा प्रॉफिट आप ले लो। जो मिडलमैन खाने वाला था आप खाइए। एक मिडलमैन आमिर बनकर नहीं चलेगा,
2000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें अमीर बन सकती है एक मिडलमैन की जगह पे। इतना मुनाफा वो लोग कमा रहे हैं। मुनाफा मिलना चाहिए सबको, पक्का, मेरा उससे कोई नहीं। दूसरा है, बहुत सारे डॉक्टर लोगों को अवेयरनेस है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर विनायक शिंदे करके स्टर्लिंग हॉस्पिटल में, वो सब लोगों को बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक खाना खाइए। उन्होंने खुद ने 2 एकड़ लैंड लेकर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। वो भी डॉक्टरों को खाना खिलाते हैं। उनके पास बहुत भीड़ होती है हॉस्पिटल में, करोड़ों रुपए की भीड़ छोड़कर वो किसानों के पास आते हैं, सब्जियां इकट्ठा करते हैं और उन डॉक्टरों को खाना खिलाते हैं। मतलब ऐसे लोग बहुत है, लेकिन हम किसानों ने उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। मिडलमैन के लिए काम नहीं करना है, इन ऐसे भगवान जैसे इन लोगों के साथ काम करना है। पुणे यूनिवर्सिटी में भी जितने स्टाफ अच्छे काम कर रहे हैं, उधर भी आपका आपका जो जो पहचान वाले किसान के संगठन है, उनका सब्जी धान मिल्क फ्रूट आप हफ्ते में 2 दिन बास्केट क्यों नहीं मंगा रहे? आप मॉल में खरीद रहे, मंडी में खरीद रहे, उनको क्यों अमीर बना रहे? किसानों को अमीर बनाने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अफसर लोग हैं, वो हमें हेल्प करना बहुत जरूरी है। आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको आपको और हमें मिलकर बोलना है उनके साथ। फिर क्या हो जाएगा, किसानों को एक अच्छी बाजार पेठ होनी है। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत लोग बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके बहुत भारी फार्मिंग कर रहे हैं। वो भारी स्टोरी मत दिखाओ, ये कोई स्टोरी की जरूरत नहीं, वो कितना पैसा कमा रहा है ये दिखाओ। जब पैसे पे टाइम आता है तब करते नहीं ना, वो लॉस में है। वो गवर्नमेंट ने उनको इतना सब्सिडी दिया, उतना दिया, कितने साल गवर्नमेंट के ऊपर चलेगा, कितने साल तक? हमको सेल्फ सस्टेन करना है, तो हम सब मिलकर 100% ये छोटे छोटे ग्रुप डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। और डायरेक्ट मार्केटिंग सिर्फ सिटी में ही होता है ऐसा कुछ भी नहीं। गांव में हर हॉस्पिटल का डॉक्टर खाना खाने के लिए तैयार है ऑर्गेनिक। हर नौकरी करने वाला आदमी खाना खाने के लिए तैयार है। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है, आईटी पार्क, सब लोगों को ऑर्गेनिक खाना है, लेकिन कौन है देने वाला? हम कितना काम कर रहे हैं अभिनव ग्रुप, इतने लोग होकर भी हम 0.% में भी काम नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक का बहुत डिमांड बढ़ रहा है। तो हर यूनिवर्सिटी ने, हर विद्यापीठ ने अभी रिसर्च करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक पे प्रोडक्शन बढ़ना है। बहुत सारी डिसीज के प्रॉब्लम आते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए काम करना है। मेंगड़े साहब काम करते हैं, हमेशा रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, आप लोगों के साथ मिलकर। वैसे सब जगह पे काम होना है। पहला हमने प्रोडक्शन कम था, इसलिए खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, इसलिए केमिकल के फर्टिलाइजर निकाले। अभी तो खाना बहुत हो गया है ज्यादा, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर धीरे धीरे पूरा कम करके ऑर्गेनिक पे आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम होना जरूरी है। डिसीज के प्रॉब्लम खत्म होने के लिए काम होना जरूरी है। और उसकी कीमतें भी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को परवड़ना चाहिए। हम लोग एक बायोगैस है, हमारे पास 2 गाय है, देशी गिर गाय है। गायों का दूध 10-10 लीटर होता है रोज। हम लोग 100 रुपए लीटर से ऑल ओवर महाराष्ट्र में घर घर में बेचते हैं। तो गाय का दूध का भी रोज का पैसा आता है। 20 किलो गोबर से बायोगैस है। बायोगैस से महीने का 2 सिलेंडर मिल रहा है, 10-12 लोगों का खाना उसके ऊपर तैयार हो रहा है। उसमें से स्लरी बाहर आती है, स्लरी में बैक्टीरिया ऐड करके हम लोग खेती में देते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर और कोई भी ऑर्गेनिक का भी खर्चा कम हो गया, क्योंकि खर्चे कम खर्चे किया तो वही प्रॉफिट है। दूसरा अलग टाइप का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग रेस में है। मैं 10 रुपए पाव से बेचता हूँ तो दूसरा 7 रुपए पाव में बेचने के लिए तैयार है। मैं 20 रुपए से बेचता हूँ, दूसरा 15 रुपए से बेचने के लिए तैयार है। ये रेस है सब सिस्टम में। इसीलिए हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है। उसके लिए गवर्नमेंट की सब सिस्टम में काम करना चाहिए। पहला काम प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना। बहुत इनपुट बनाने वाली कंपनियों के लिए काम नहीं करना है, किसानों के लिए काम करना है। इनपुट बनाने वाली कंपनियां तो अमीर बनेगी ही बनेगी, और उनके लिए तो सब चल रहा है। ये सब किसानों के लिए अभी काम होना बहुत जरूरी है। आप सब किसानों के लड़के हैं, आप सब किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। जब किसान है तभी सबको खाना मिलेगा। अभी तक कोई कंप्यूटर भी नहीं बना जो खाना तैयार कर सकता है। कोई साधु भी नहीं तैयार हो गया जो मंत्र डाल के भिंडी को भिंडी लाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, काम ही करना पड़ेगा। और नेचर भी बहुत खराब हो रहा है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी बढ़ रही है, कभी भी ठंडी बढ़ रही है। उसको कंट्रोल कैसे करना है मैन्युअली घर के घर में, उसके बारे में आपको रिसर्च करना है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च के लिए पैसे नहीं है। हमारा रोज का दिन अगर काम नहीं किया तो रोज का दिन भी नहीं जाता है किसानों का। इसलिए उस सब सिस्टम में रिसर्च का काम आप लोग करोगे, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। तो आपका टेक्निकल और हमारा प्रैक्टिकल, ये दोनों को इकट्ठा करके अगर काम करेंगे तो हमारा देश पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। 140 करोड़ नहीं, 800 करोड़ पॉपुलेशन को हम लोग खाना खिला सकते हैं। ये ताकत आप लोगों ने हमें दी है, और उसका इस्तेमाल हम लोग मिलकर अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चाहे एफपीसी हो, एफपी हो, सबको मिलकर एक साथ काम करना है। और एक साथ काम करके इसमें हर्बल मेडिसिनल इसकी बहुत जरूरत है। वो जैसे जैसे अच्छी हो वो हमको चाहिए। जो जो किसानों को जिधर जिधर आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल की, हम है आपके साथ। जिधर हमें टेक्निकल की जरूरत है वो सब टेक्निकल की हम टेक्निकल सपोर्ट आप करेंगे और प्रैक्टिकल हम लोग मिलकर करेंगे। ये सब सिस्टम में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान और कस्टमर। अभी पुणे पुणे सिटी का आप देखेंगे तो 70-80 लाख पॉपुलेशन है पुणे का। तो पुणे में जितना भी मटेरियल लगता है, पुणे में महापौर है, ये सब लोग है, ये सब लोग गांव में ट्रांसपोर्ट का सुविधा क्यों नहीं करते कि सिटी में जितना खाना लोगों को लाना है उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट हमें हमें क्यों नहीं दे रहे कॉर्पोरेशन। उनके लोगों को खाना खिला रहे हैं हम लोग ना। कोई ट्रांसपोर्ट का नहीं है। 2000 की सब्जी और 3000 रुपये ट्रांसपोर्ट वाला मांगता है, कहाँ से देंगे हम लोग? किधर है हमारे पास उतना पैसा? सब ट्रांसपोर्ट महंगा महंगा, लेबर महंगा, सब महंगा, फिर हम काम कैसे करेंगे? कैसा आपको खाना खिलाएंगे? नहीं तो एक दिन ऐसा होगा सिर्फ हम हमारे लिए खाना पकाएंगे, हमारे लिए खाना तैयार करेंगे, किसी किसी को भी नहीं खिलाएंगे। फिर क्या खाएंगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खा सकते, नोटों का बंडल खा सकते, गोल्ड खा सकते, क्या खा सकते? तो इसके बारे में हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी ये सब सिस्टम चलेगा। और 100% हम सब आपके साथ है। जिधर भी जरूरत पड़े ये रोल मॉडल हम पूरे देश में किधर भी आपको करना है उधर हेल्प करने के लिए तैयार है। क्योंकि देश के सब किसान अमीर होने चाहिए, तब ज्ञानेश्वर बोर्ड के अमीर हो जाएगा। एक ज्ञानेश्वर बोर्ड के या एक अभिनव ग्रुप अमीर बनकर कुछ नहीं होगा। इतना ही मुझे कहना है। और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, मोकाट साहब और सब सब टीम, सब विद्यापीठ और सब सीए सर का भी मुझे अच्छा उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ दिया। हाँ ज्ञानेश्वर जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम जुड़े रहिए लास्ट तक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। लेकिन किसान भाइयों, जो गांव जो है एक मान करके गांव पुणे के नजदीक वाला गांव है, जिनको सम्मान देने वाले हमें हमारे ज्ञानेश्वर जी है। पुणे में 2 ज्ञानेश्वर है। एक हमारे आलंदी में ज्ञानेश्वर है, जो चाहते हैं कि पूरे दुनिया में शांतता मिले, सभी को ज्ञान मिले। और हमारे दूसरे ज्ञानेश्वर जो है ये चाहते हैं कि सभी किसान अमीर हो जाए, सभी किसान जो है अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट हो जाए। हमारे देश को विकसित करना है तो हमें किसान को विकसित करना होगा। ये जो अभिनव किसान संघ है ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है देश में। और मैं सभी किसान को विनती करूंगा कि हमारे आरसीएफसी द्वारा हम प्रशिक्षण लेते रहते, कार्यशाला लेते रहते, हम पुणे में भी लेते। तो जरूर आप पुणे में आइए। हमारे ये जो ज्ञानेश्वर जी है इनके फार्म पे विजिट करिए, इनके कंपनी में विजिट करिए। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो बोल रहे हैं कि कंपनी के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जुड़वाया है, जो महिलाएं हैं गांव के उनको जुड़वाया है। हमारे जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें सभी का अगर योगदान हम लेते हैं और हर घर में हर दिन पैसा जाता है, तो किसान का अगर वहां पे किसान को अगर हर दिन पैसा मिलता है तो बहुत आनंद होगा, सभी को आनंद होगा। और जो किसान खेती नहीं करना चाहते, किसान के बच्चे खेती नहीं करना चाहते, वो सभी खेती से जुड़ जाएंगे और हमें अच्छा उत्पाद मिलेगा, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए उनका कार्य बहुत ही, वो भी जुड़े रहेंगे। और अभी मेरा थोड़ा सा आपको ये हमारे वेबिनार में हमारे जो सह संयोजक है डॉक्टर ए बी आडे भी जुड़े, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आगे जो है मुझे 5-10 मिनट मार्गदर्शन करता हूँ। हमारे जो अफसर है संध्या के पास अभी 2 मिनट के लिए। ओवर टू संध्या प्लीज। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मार्गदर्शक है इस केंद्र के प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर मोकाट सर। इनका मैं परिचय देती हूँ। प्राध्यापक डॉक्टर मोकाट सर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे में वनस्पति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक है। इसके साथ सर क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिमी क्षेत्र, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय पुरस्कृत प्रकल्प के प्रमुख अन्वेषक एवं क्षेत्रीय निदेशक पद पर कार्यरत है। इस प्रकल्प के माध्यम से
सर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर दीव दमन हवेली क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती, संवर्धन, प्रशिक्षण, विपणन, प्रक्रिया इत्यादि में 4 साल से कार्य कर रहे हैं। सर 21 सालों से अध्यापन, अनुसंधान और सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। सर अलग अलग 15 वैज्ञानिक परियोजनाओं के प्रमुख अन्वेषक रह चुके हैं। सर ने 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विशेषज्ञ के तौर पे मार्गदर्शन किया है। सर का संशोधन क्षेत्र में भी बड़ा कार्य है। उसमें 3 पेटेंट, 62 शोध पत्र, 10 पुस्तकें, 6 पुस्तकों में अध्याय प्रकाशित किए हैं। उन्होंने अपने करियर के विशाल कार्यकाल में 30 से अधिक छात्रों को शोध कार्य में मार्गदर्शन किया है और 4 छात्रों को पीएचडी पदवी में मार्गदर्शन किया है। सर के इन विशाल कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काफी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही सर को वसंतराव नाईक प्रतिष्ठान पुसद यवतमाळ इनके ओर से दिया जाने वाला कृषि क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से 2023 साल में सम्मानित किया गया है। प्राध्यापक मोकाट सर, कृषि प्रधान भारतवर्ष सभी किसानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने हेतु औषधीय खेती के क्षेत्र में किस प्रकार उन्नति कर सकता है, इस संकल्प को लेकर सर दिन रात किसानों की सेवा में जुड़े हुए हैं। आज के वेबिनार में सर हमें एफपीसी एफपीओ द्वारा औषधीय पादप क्षेत्र में कार्य इस विषय पर किसान भाइयों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं सर से विनती करती हूँ कि वे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। अभी अभी हमारे ज्ञानेश्वर जी है, उन्होंने हमारे खेती क्षेत्र में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और हम अगर समूह करते हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा क्या काम कर सकते, इसके बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दी। हमारा जो वेबिनार है ये हमारा 38वां वेबिनार है और ये वेबिनार में हम एफपीसी का गठन कैसे करें, एफपीओ का गठन की जरूरत क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या है, इसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। और हमारे जो चेतन जी है वो खुद सीए हैं, उन्होंने अच्छे तरह से हमें मार्गदर्शन किया है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो सेक्टर है हर्बल सेक्टर, जिसे हम औषधि पादप क्षेत्र बोलते हैं, ये औषधि पादप क्षेत्र में जैसे हमारे ज्ञानेश्वर जी ने आपको बताया कि अलग अलग जो सब्जी है, फल है, धान है, ये क्षेत्र में काफी अच्छा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा या सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा काम हो रहा है। लेकिन औषधि पादप क्षेत्र में अभी भी हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हर्बल सेक्टर जो है इसमें हमारा जो हर्बल सेक्टर है, हर्बल या ये मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है, इसमें इंटरनेशनल नेशनल मार्केट काफी बढ़ रहा है। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट की मांग जो है वो खाली औषधि बनाने के लिए नहीं, तो न्यूट्रासिटिकल, फूड सप्लीमेंट, कॉस्मोसिटिकल्स, हमारे जो काफी ऐसे चीजें हैं जैसे कि वेटरनरी मेडिसिन है, ये सभी में बहुत ही ज्यादा मांग बढ़ रही है। और कारोबार जो है मेडिसिनल प्लांट का हर साल 13 से 15% बढ़ रहा है। और ये कारोबार अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है तो हमें हमारे देश में औषधि पादपों का खजाना है, और औषधि पादपों के माध्यम से अगर हम उसको ठीक से इकट्ठा करते, कलेक्शन ठीक से करते, उसका खेती हम करते, उसका प्रसंस्करण ठीक से करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करते, उसका मार्केटिंग ठीक ढंग से करते, तो इसमें हम अच्छा योगदान दे सकते हैं। और ये करने के लिए हमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर एफपीसी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना जरूरी है। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो जुड़े हुए किसान हैं वो तो अलग अलग प्रांत में, कोई राजस्थान में काम कर रहे हैं, कोई गुजरात में, कोई तो 1-2 किसान हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान मेडिसिनल प्लांट में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका हर एक किसान, जैसे हमें ज्ञानेश्वर जी बोले, किसान कंपनी क्यों ना स्थापित करें, किसान का कंपनी होना जरूरी है, किसान उसका डायरेक्टर होना चाहिए, किसान उसका चेयरमैन होना चाहिए, और जो लाभ है
वो लाभ जो है सभी किसान को एक जैसे मिलते हैं, जो भी मेंबर है, जो भी डायरेक्टर है, एक जैसे मिलते हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने के बाद हम जो कारोबार है मिलके कर सकते हैं। एक किसान जो है, अगर हम अश्वगंधा की खेती करते हैं, अगर हम कालमेघ की खेती करते हैं, अगर हम तुलसी की खेती करते हैं, एक किसान आधा एकड़ में, 1 एकड़ में लगा सकता है। लेकिन अगर हमें बेचना है तो मंडी में जाना पड़ेगा। हमने जो ट्रांसपोर्ट का अभी बताया कि ज्ञानेश्वर जी ने, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा खर्चा होता है। तो अगर हम इकट्ठा होके इसका अगर खेती करते, प्राइमरी प्रोसेसिंग करते, मार्केट में इसको लेके जाते हैं, या जो प्रोसेसिंग करने वाले इंडस्ट्री है इनके साथ अगर एमओयू करते हैं, अगर हमारा कंपनी स्थापन होने के बाद अगर हम करते हैं, तो काफी सारे इंडस्ट्रीज जो है जिनका कारोबार 100 करोड़ के ऊपर है, ऐसे काफी कंपनी है कि जो फार्मर के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो एक किसान के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते। अगर फार्मर का क्लस्टर है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर इन्वेस्टर ग्रुप है, तो उनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और जो एमओयू है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो करना चाहते हैं। काफी ऐसे कंपनी जैसे कि चरक फार्मा है, डाबर कंपनी है, दूध पापेश्वर है, पतंजलि है, इनका जो कारोबार है वो 1000 करोड़ों में है। और ये जो है कंपनी किसान के साथ जुड़ना चाहती है। इसलिए अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है अगर आप स्थापित करते तो किसान अगर 10, 20, 25 भी उसमें जुड़ जाते। आपको खेती करना है तो उसको नर्सरी करना पड़ेगा। आप अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करते हैं तो आपको पौधशाला के लिए आप एक ग्रुप में पौधशाला बना सकते हैं। और ऐसे पौधशाला को, छोटी पौधशाला बनाने के लिए 6 लाख रुपए उसमें सब्सिडी आपको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से दिया जाता है। अगर आप बड़ी पौधशाला बनाना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में आपको मिलती है। आप पौधशाला बनाने के बाद खेती करना चाहते हैं और खेती आप क्लस्टर फॉर्म में करते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपको करना है, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्रपोजल आप एनएमपीबी, जो हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, ये जो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ये जो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिसिनल प्लांट के लिए काम करता है, देश भर में काम करता है, विच इज हैंडलिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द मेडिसिनल प्लांट्स। और ये कोऑर्डिनेशन भी करता है हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ। ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन भी करता है। अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करते हैं तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो पौधशाला का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का हो, चाहे वो खेती करने का हो, या हमें जो ज्यादा उत्पाद देने वाले जो किस्म है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है, उसका बीज उपलब्ध करके देना है, और आगे जाके हमें इसके अगर ड्राइंग करना है, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है मेडिसिनल प्लांट में मार्केटिंग का कंस्ट्रेंट है, इसका कृषिकरण जो है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है, जितने भी औषधि पौधे, उसका कृषिकरण जो है वो हमें पता नहीं है। वो भी हम काम हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा कर सकते हैं। हम कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा अनुसंधान करने वाले जैसे आरसीएफसी या विश्वविद्यालय उसके साथ जुड़ सकते हैं। और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा प्राइमरी प्रोसेसिंग का काम करने के लिए जो ड्राइंग शेड जो है 10 लाख रुपए उसमें सब्सिडी दिया जाता है। ड्राइंग शेड बनाने के बाद हमें गोडाउन चाहिए, तो गोडाउन के लिए भी एक क्लस्टर के लिए 10 लाख रुपए स्टोरेज गोडाउन के लिए दिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बाद जो मेजर कंस्ट्रेंट है मार्केटिंग, अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे ज्ञानेश्वर जी ने बोला है कि मार्केटिंग हम अगर ठीक से करते हैं तो हमें एक अच्छा मुनाफा होगा। और अच्छे मुनाफे के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर हम इकट्ठा करते हैं, हमारा वेबसाइट बना देते हैं, हम सभी को ईमेल प्रोवाइड कर देते, एडवर्टाइजमेंट कर देते, और हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करते हैं, तो काफी लोग जो है जिनको रॉ मटेरियल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे उसका रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, एक बाजू में रोग जो है काफी बढ़ रहे हैं, डिसीजेस बढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, औषधि जो पौधे उसका रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, दूसरे बाजू में वो जो उपलब्धता होनी चाहिए उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, जंगल में जो चीजें मिलती थी वो कम हो गई है, उसका खेती करना जरूरी है, और अकेले किसान इसका खेती नहीं कर सकता है। ग्रुप करके अगर हम खेती करते हैं, जैसे हमारे चेतन जी ने बोला है कि ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं है, 10 हमारे किसान चाहिए, मेंबर मिनिमम 10 चाहिए, और उसमें 5 डायरेक्टर होंगे, 5 बाकी मेंबर होंगे, 10 का ग्रुप करते तो हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खुलवा सकते हैं। तो ये करने के बाद आगे हम चलते, मार्केटिंग जो है
हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी खुलवानी है तो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1 CR 2 CR का प्रपोजल जो है नेशनल मेडिसिनल बोर्ड को दे सकती है। हमें स्टेट मंडी भी खुलवानी है, रीजनल मंडी भी खुलवानी है, हर गांव में जहाँ पे जो पैदा हो रहा है उसके लिए मंडी खुलवानी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर बन जाती है तो उसके द्वारा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के पास प्रोविजन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंडीज ऐसा करके उसके पास प्रोविजन है। और ये जो है ये प्रोविजन से हम किसान जो है लाभ उठा सकते हैं। हमें इंश्योरेंस भी मिल सकता है अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का क्लस्टर बन जाता है, 10, 15, 20, 25, 100 मेंबर बन जाते हैं और उसका क्लस्टर बन जाता है। हमें इंश्योरेंस लेना है मेडिसिनल क्रॉप का, तो हमें प्रीमियम का जो पैसा है वो भी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का मिलता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को हमें सभी को ट्रेनिंग देना है, तो ट्रेनिंग के लिए भी वहां पे पर पर्सन पर फार्मर 2000 रुपीज पर डे प्रोविजन है। सो फार्मर के लिए 2 लाख रुपए आपको ट्रेनिंग के लिए मिल जाएगा। और ऐसे ट्रेनिंग लेके एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा हम काम कर सकते हैं। हमें आज जो है ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमें तज्ञ भी ऐसे मिले हैं, ज्ञानेश्वर जी, जो अभी 2 डेकेड से 20 साल से ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने तो काम तो 97 में शुरू किया था, लेकिन ये पिछले 2 दशकों में इनका कारोबार अगर आप देखते हैं बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने खड़ा किया है कि हम इकट्ठा अगर फार्मर होते हैं हर दिन हमारे घर में पैसा आ सकता है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को, सभी किसान जो आज जुड़े हुए हैं, आपके आजू बाजू में हमारे यहाँ कैसे होता है कि देखिए ये वेबिनार हमने रखा है, हमारे सेंटर द्वारा ऐसे प्रोग्राम करते रहते, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में कम लोग जुड़ जाते। आप ये इंफॉर्मेशन लेके आपके आजू बाजू में आपका ये जिम्मेदारी आज रहेगा कि 10 किसान को आप ये आज का जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्ञानेश्वर जी है, जो चेतन जी है, हमारे सीए चेतन जी, इन्होंने जो भी आपको ज्ञान दिया है इसका इस्तेमाल, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम गांव-गांव में करते, तो अगर ज्ञानेश्वर जी एक मान गांव को, एक छोटे गांव को सम्मान दे सकते, नेशनल लेवल पे लेके जा सकते, तो हम भी हमारे गांव के लिए काम कर सकते। तो इसलिए हमारा जो आरसीएफसी है, आरसीएफसी सेंटर है, जिसको हम क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र बोलते हैं, ये हमारा जो सेंटर है पश्चिमी देश भर में 7 आरसीएफसी है, लेकिन हमारा जो आरसीएफसी है ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए काम करता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और जो केंद्र शासित प्रदेश है दीव दमन दादरा नगर हवेली, यहाँ के किसान इकट्ठित हो जाए, हमारे से ट्रेनिंग ले ले, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्टैब्लिश करे और आपका खुद का पौधशाला बनाए। क्योंकि पौधा अगर खेती करने औषधि की तो हमारा प्लांटिंग मटेरियल पे ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए पौधशाला आप खुद का बनाइए। पौधशाला बनाने के बाद आप खुद क्लस्टर में उसका प्लांटेशन करिए। उसका अगर रॉ मटेरियल निर्माण होता है तो आप एमओयू जो है, बड़े कंपनी है या बड़े एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर्स है, उसके साथ आप एमओयू कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी लेके आप ये क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम आप सभी को विनती करते हैं आप जरूर हमारे संपर्क में रहे। और अभी जो हमारा जो क्षेत्र है औषधि वनस्पति, आप खेती में तो काम कर रही है और करना जरूरी है, हमें धान की भी जरूरत है, हमें सब्जी की भी जरूरत है, हमें फलों की भी जरूरत है, लेकिन औषधि पौधों की खेती अगर हम अलग से करते हैं और हम उसका इंटरक्रॉप भी लेते हैं, हम हमारे जो बंड्स होते हैं, खेत के बंड्स होते हैं या खाली पड़े हुए जगह जो है, जो हमारे ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि हम 1 गुंठा भी पैदा करते हैं, क्योंकि फ्रेश जो रॉ मटेरियल है, फ्रेश ड्रग जो है, काफी लोगों को जरूरत है। किसी को एलोवेरा की जरूरत है, किसी को व्हीट ग्रास की जरूरत, किसी को मोरिंगा के पत्ते चाहिए। ये सभी जो चीजें हैं हम अगर ग्रुप बनाते हैं और उसका जो है उसका मार्केट, अभी एक सृष्टि करके फाउंडेशन है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये अहमदाबाद स्थित है, हर एक संडे उनका ये मार्केट लगाते हैं, एक विश्वविद्यालय में वो मार्केट लगाते हैं, जो भी चीजें है किसान ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वहां पे लेके आते हैं और वहां पे मंडी इतनी अच्छी स्टैब्लिश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की हो गई। ये सृष्टि फाउंडेशन जो है उसके द्वारा उसको चलाया जाता है। यहाँ हर एक स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो और बाकी भी स्टेट में ऐसे मंडी स्टैब्लिश होना जरूरी है। आज आप सभी ये वेबिनार के लिए जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए। आप हमें क्वेश्चन आंसर भी आप क्वेश्चन भी पूछे, उसका आंसर भी आपको जो हमारे एक्सपर्ट है सीए चेतन जी और श्री ज्ञानेश्वर जी
मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। लास्ट में हमारे जो चीफ गेस्ट है वो डॉक्टर मुकुंद जी तापकीर सर आपको थोड़ा गाइडेंस करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हमारे जो सह संयोजक है प्रोफेसर ए बी आडे, वो आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। आप जुड़े रहिए 10-15 मिनट के लिए। ओवर टू संध्या प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम भोजाराम है, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये सिंधी सर से था। एक्चुअली जो लैंड ऑफ डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड रहता है क्या उसके लिए सभी फार्मर्स का, जो बोर्ड मेंबर बना रहे हैं हम लोग एफईसी बनाने के टाइम पे? यस यस। तो हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? तो सर जी बेसिकली क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गवर्नमेंट ने ओनली फार्मर्स के लिए बेनिफिट दिया है। जी तो इसमें वो लोग बहुत केयर ले रहे हैं, और एंड इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप देखोगे कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काफी सारे शेयर होल्डर होते हैं, बराबर, सारी जी पब्लिक के लिए वो ओपन होता है। जी बट कंसिडरिंग कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कुछ अलग सब्सिडीज है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसलिए जी उन्होंने स्पेसिफिकली एक एकदम से एक डॉक्यूमेंटेशन फिक्स रखा है कि आपको एक 7/12 या खतौनी ओनरशिप होनी चाहिए, तो आपको ओके। वो रेडी रखना ही होगा। जैसे एग्जांपल बताऊं कि मेरे पिताजी के नाम की जमीन है, मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं, तो क्या पॉसिबल है? यस यस, ये पॉसिबल है एक्चुअली। इसमें कैसे है, अभी ये प्रॉब्लम तो सभी जगह रहता है कि जी क्या होता है, जो भी करता रहता है उसके नाम पे ही सारी जमीन रहती है। तो जी आप इस केस में क्या कर सकते हो, वही 7/12 लेके आप जी जा सकते हो आपके तलाटी या तहसीलदार के पास। अगर वो ठीक है फार्मर प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट एक देते हैं, उसका एक फॉर्मेट रहता है, चाहे तो ठीक मैं है आपको सेंड कर दूंगा। जी तो वो अगर सर्टिफाई करते हैं तो जी आप इसमें ये हो सकते हो, मेंबर बन सकते हो। जी। एक सर आपने बताया था डीएससी का, डीएससी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? और आप बता रहे थे वीडियो प्रोसेस है, तो क्या एक अनपढ़ आदमी जो मतलब इलिटरेट हो, क्या वो डीएससी के लिए एलिजिबल है या नहीं? ओके, तो सर देखिए, डीएससी का पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट ने ये क्यों लाया है। अगर जी आपको पहले एक 10-15 साल जब मैं सीए पढ़ता था, उससे पहले न्यूज आती थी कि यार ये कंपनी इधर सोलापुर में ये लोकेशन में थी, इसने डिपॉजिट लिए और आज अब कुछ जाते हैं और वो कंपनी उधर रहती नहीं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो गवर्नमेंट ने उसके बाद ऐसी सारी काफी सारी फ्रॉड कंपनी निकाली। उनको पता चला यार काफी सारे, एक बंदा कहीं से आता है, 4-4 पैन कार्ड निकालता है, आधार कार्ड बनाता है, और वही पैन कार्ड के बेसिस पे वो 10 कंपनी में मेंबर होता है और 10 जगह शेयर होल्डर होके दिखाता है। अभी ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ, काफी सारे जो जेन्युइन लोग थे उनको सफर करना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर लाइक डीएससी। तो ये डीएससी मतलब क्या है, एक आपका ऑथेंटिकेशन एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तब से ये जो ऑफिशियल्स है वो डायरेक्टली आपका पैन कार्ड आधार कार्ड चेक करते हैं, वो आपका वीडियो चेक करते हैं, और वो वीडियो अगर आपका ये है सही है तभी वो approve करते हैं। अभी वीडियो बनाना सर थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, मतलब अभी तक 150-200 कंपनीज इनकॉर्पोरेट करी है हमारे ग्रुप ऑफ फर्म्स ने। हमारी काफी सारी जो दोस्त है वो सीएस सीए है, तो उन्होंने जो भी 200 के आसपास कंपनीज इनकॉर्पोरेट की है, तो उसमें उनको मेजर चैलेंज तो यही आया है डिजिटल सिग्नेचर का। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अभी मैं मेरे गांव देखता हूँ रामपुरवाड़ी, तो उधर काफी सारे जो फार्मर्स है उनके पास मेल आईडी ही नहीं है, या किसी, अभी बहुत सारे लोगों के पास एक स्मार्टफोन आया है तो बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं रहता। तो ऐसी केस में आप क्या कर सकते हो कि आप सब, हमने क्या किया था, सब किसानों को एक साथ एक ऑफिस में बिठाया था। ओके, और एक ट्रेन पर्सन उनके पास भेजा था, उनको गाइड किया यार आप ऐसे ऐसी वीडियो बनाओ। ओके तो ये वीडियो का तो मैंडेटरी है, बट यस, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद दिक्कत सिर्फ इतनी हुई, एक 3-4 बार वो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, बट उसके बाद उनके वीडियोस भी अपलोड हुए। यस, थोड़ा इसमें बोल सकते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि इट इज पॉसिबल। क्योंकि अगर फार्मर को आगे बढ़ना है तो डिजिटलाइजेशन और ये सब चीजों में अभी आगे आना होगा। और अभी मैं बोलूंगा कि हमारे फार्मर्स भी स्मार्ट फार्मर्स बनने के लिए रेडी है। ये एरा ही
एक अभी एआई एंड स्मार्टनेस डिजिटाइजेशन का है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, इलिटरेट कोई भी आदमी अपना सिग्नेचर करना नहीं जानता हो, क्या वो एक बोर्ड मेंबर बन सकता है? यस 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 बन सकता है। और दूसरी चीज ये थी, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ बोलना भी होता है उस यस। वीडियो में कि मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्या वो यदि अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल दे तो क्या एमसी उसको एक्सेप्ट करता है? अभी इसमें क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन द ऑफिसर। ओके, तो 90% केस में ना लोकल लैंग्वेज में अगर वो बोलता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, ओके। और अगर आप देखोगे तो उधर कोड भी रहते हैं जो जी डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं, जी राइट? जी। तो 90% केस में ना वो एक्सेप्ट हो जाता है। मेरा क्वेश्चन और था डीआईएन के लिए या फिर डीएससी, ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है इसका? 1 साल है, 5 साल है? ओके, तो गुजर डीएससी का कैसे होता है, डिजिटल सिग्नेचर की अलग अलग वेंडर्स रहते हैं, जैसे कि कैप्रिकॉन रहे या ऐसे अलग अलग टाइप है। तो इस पे डिपेंड है, नॉर्मली 2 साल का इसका वैलिडिटी रहता है, बट कुछ जो वेंडर्स है वो 3 साल का भी प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली आप इसको 2 साल के लिए ये हो जाती है, वैलिड रहती है। ओके सर, थैंक यू सर, मैंने ज्यादा टाइम लिया, सॉरी फॉर। नहीं नहीं सर, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच सर फॉर आपके इतने क्वेश्चंस आए, थैंक यू सो मच। गुजराम जी, जी पर बाकी लोगों की नेक्स्ट, किसी को अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। विजय सर, आई थिंक Sir, यस सर। yes, Sir, I got one question for you. There is a land holding and a joint name. ओके, Hello, can you hear me? सर आपका परिचय दे पहले और हाँ, बाद का क्वेश्चन पूछे। मैं विजय येरुनकर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। मुझे यही पूछना था कि ये जो मेंबरशिप रहती है, 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ एफपीओ, as you said, ओके, and if there is a joint family ओके, having their land holdings in their old name or their different names, different identical, I mean they are having their own holdings, ओके। तो वो एक फॉर्म कर सकते हैं क्या? ये एफपीओ फॉर्म कर सकते हैं क्या? जॉइंट फैमिली रहेगी? यस सर, वो फॉर्म कर सकते हैं, बस इसमें केयर क्या लेनी होगी कि उनको एक चैलेंज ये आएगा जब उनको तहसीलदार जो रहेंगे अपने तालुका लेवल, राइट, या आपके एग्री ऑफिसर है, वहां जाके ना एक सर्टिफिकेट रहता है, फार्मर प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट, राइट। तो अगर ये चीजें वो उधर मेंशन करवा के देते, और अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट पे देते, आपका ये इशू कुछ में ये नहीं रहेगा आपको ये। वो इंडिविजुअल, वो फार्मर प्रोड्यूसिंग सर्टिफिकेट है, वो इंडिविजुअल नाम से प्रोड्यूस दिया जाता है क्या? यस यस, इंडिविजुअल नाम से देते हैं वो, जिसके नाम से वो होल्डिंग होगी उसके नाम से दिया जाता है। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली सर क्या होता है, ऐसी काफी सारी दिक्कतें हैं, जैसे आपने बताया ये तो एक प्रॉब्लम हुई, ऐसी काफी सारी अलग भी दिक्कतें आती, इसलिए तो उन्होंने क्या किया है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, हम कोई थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन भी रखते हैं एक। इवन ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आप अगर अगर देखोगे तो ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन करना है, ऑनलाइन करना है, कि यार कोई मिडिल मैन आके, या आप देखते हो कोई मिडिल मैन आके समझ लो कि उसमें व्हाटएवर पैसे की डिमांड करता है या व्हाटएवर दूसरी चीजें भी होती है। तो इसी एरिया में भी गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी तलाटी तहसीलदार या कृषि अधिकारी को क्यों दी है, उनको पता है कि ये ऐसी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि 7/12 एक नाम पे रहने वाला है, समझ लो कि पिताजी का नाम है 7/12 पे, फिर उसके 4 बेटे हैं, राइट ना, या बेटी भी ज्वाइंट में है। तो ये दिक्कतों के लिए वो तलाटी एक बार ये करेगा, या जो कृषि अधिकारी रहता है उसके पास पूरी आपकी जानकारी रहती है, ओके, वो उधर के आपको एक बार वेरीफाई करेगा, और उसके बाद आपको फार्म प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट दे देगा, उस बेस पे का आपके साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थैंक यू सर। दूसरी बात, सपोज वो लैंड होल्डिंग में जॉइंट नाम है, ओके, जॉइंट नाम है, राइट, तो वो सभी जॉइंट होल्डर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं सर। रीजन बिहाइंड उन्होंने उनको इंडिविजुअल मेंबर करके ट्रीट किया जाएगा? यस यस सर, उनको इंडिविजुअल मेंबर करके जरूर ट्रीट किया जाएगा,
क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो भी मेंबर्स है, राइट, उन्होंने अगर आपने देखा, ओके, तो वोटिंग राइट्स भी मेंबर वाइज रखा है, ओके। करेक्ट। इवन अगर आपके एक ही इसमें है तो उनको फार्मर चाहिए उनको, ओके, तो आपके नाम पे जमीन के इनके 7/12 के अगर आपका नाम है तो दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। उनको सिर्फ ये प्रूफ चाहिए कि यू आर फार्मर, तो आपके नाम पे ऐसा कहीं भी नहीं है यार आप 1 एकड़ में 10 किसान है या 10 एकड़ में 50 किसान है, राइट ना। तो ये कोई कंडीशन ऐसी उन्होंने मतलब ये की नहीं, अगर वैसे करते तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, बस आप फार्मर हो ये प्रूव होना चाहिए। ओके चेतन जी, यस सर। चेतन जी आप आपका नंबर चैट बॉक्स में दे। अभी लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा पार्टिसिपेंट से, और जिनको क्वेश्चन है वो डायरेक्ट दे कैन आस्क टू हमारे जो ज्ञानेश्वर जी या उनको कर सकते हैं, या हमारे द्वारा वो हमारे तज्ञों से को दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। सर नमस्कार, मी गणेश चप्पलवर बोलतोय। मोकाट सर, तुम्हालाच माझा प्रश्न है। आप हिंदी में बोले सर, हिंदी में। जी सर, नमस्ते, मेरा नाम गणेश, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। सर मोकाट सर से मेरा सवाल है कि सर रोप बनाने के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो, और जो आयुर्वेदिक पौधे हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं कि वो 2-3 साल में बड़े हो जाएंगे और उसको हम सेल करेंगे विथ। हाँ समझ में आ गया सर, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। हेलो, आप जो अगर फार्मर प्रोड्यूसर अकेले किसान को पौधशाला के लिए कुछ उसको सब्सिडी दिया, अगर आपके पास संगठन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, एनजीओ है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, तो आपको पौधशाला बनाने के लिए आप जो है उसमें ही सब कौन से पौधे जो हमें 1-2 साल में दे सकते हैं, ये तो बहुत बड़े हैं। आप तवर की खेती कर सकते हैं, आप सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं, आप तुलसी की खेती कर सकते हैं, कालमेघ की खेती कर सकते हैं, आप ब्रह्मी की खेती कर सकते हैं, दुपपर्णी की खेती कर सकते हैं। अशोक, आपके जलवायु मिट्टी कैसी है सभी देखिए, आपको पूरा गाइडेंस जरूर विजिट करिए, और कौन से पौधे कहाँ पे लगाए में वो तैयार हो जाते हैं, और कहाँ पे बायबैक अगर एग्रीकल्चर सभी जानकारी जाते हैं, वहाँ पे आ जाइए, जरूर ये इंफॉर्मेशन सभी। नेक्स्ट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके सर बोलिए। हाँ, मैं शिवशंकर शर्मा, केसराई पाटन डिस्ट्रिक्ट, बूंदी, राजस्थान से। ओके सर एफपीओ के लिए मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? सर एफपीओ के लिए तो 2 मेंबर भी सफिशिएंट है, ओके, मिनिमम मेंबर। अगर आप एफपीसी के लिए जाना चाहते हो तो उसमें 10 मेंबर चाहिए। अच्छा, यस। हाँ देखिए, चार्ट बॉक्स में हमारा सेंटर का भी नंबर दिया गया है, और हमारे जो चेतन जी है और मैं ज्ञानेश्वर जी को भी विनती करता हूँ कि आप भी आपका नंबर चार्ट बॉक्स में दे दे। आप जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है आप संध्या, उनका परिचय दे दे, और उनका मार्गदर्शन भी हमें 5 मिनट में लेना है, प्लीज। थैंक्स सर। संध्या। यस सर। मैं हमारे वेबिनार के प्रमुख अतिथि डॉक्टर मुकुंद तापकीर सर से विनती करती हूँ कि वे हमारे आज के वेबिनार में हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। हाँ संध्या, मुकुंद सर जो है हमारे, वो लगभग उनका आयु अभी 75 क्रॉस कर दिया है, और लगभग 50 साल से वो सहकार में जुड़े हुए हैं और किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा विपणन कॉमर्स जो है, खेती का कॉमर्स, ये सभी उसमें उनका काफी अच्छा योगदान रहा है। पूरे भारत भर में वो घूमते रहते हैं, लोगों को, स्टूडेंट को मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज वो हमारे गेस्ट है, उनको हम विनती करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। मुखर सर, हम सुन सकते हैं? यस सर, यू आर ऑडिबल, एंड आवाज भी अच्छी। अच्छा,
इस ई वेबिनार में हमको जो 3 महानुभावों का मार्गदर्शन मिला, वो सीए चेतन शिंदे साहब और स्वयं ने एफपीओ चलाने का गत 25 साल का इनका अनुभव है। ये हमारे अलग साथी श्री ज्ञानेश्वर बोड़के जी, और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हमारे पुणे विश्वविद्यालय, सुन सकते हैं ना? यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, हमारे मित्र प्रोफेसर मोकाट सर और अन्य साथीगण, मुझे आपने इस सेमिनार में उपस्थित रहने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन तीनों लोगों ने आपकी मन की बात कही है। हम हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत यानी क्या? आत्मनिर्भर भारत यानी इस देश का जो बैकबोन है वो किसान है। वो किसान की आर्थिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं होती, जब तो आत्मनिर्भर नहीं होता, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अभी कई सालों से एक कंसेप्ट बना जा रही है, इसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में श्री ज्ञानेश्वर जी ने बहुत अच्छी तरह सिंपल लैंग्वेज में अपने अनुभव की बात कही है। मैं तो कहूँगा ऐसे रोल मॉडल बहुत कम मिलते हैं। इनका जो एफपीओ है, उनके ओर से कितने तरह के काम वो करते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, आर्थिक निर्भरता, इसका प्रयोग उन्होंने स्वयं किया है। इसलिए इन लोगों का सुनना, ये हमारे एक मौका आप लोगों ने दिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पंत प्रधान कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। मुझे लगता है कि ज्ञानेश्वर जी ने जो बात कही है, उसका प्रिंसिपल यही है कि अगर किसान एक साथ आएंगे तो ये क्या कर सकते हैं। उनका इकोनॉमिक एफर्ट तो हो जाएगी, लेकिन देश का भी विकास हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, और हम सब लोग इनके विचार से लाभान्वित हो गए हैं। बेसिकली मैं सहकारिता आंदोलन में काम करता हूँ, और जैसे इन वक्ता है शिंदे जी और ज्ञानेश्वर जी, मोकाट जी, और हम सब रूरल एरिया से आए हैं। देश का ग्रामीण एरिया से हम आने वाले के, हम सब का संबंध खेती से जुड़ा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। जब मैं गांव जाता हूँ तो जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि हम लोग हमेशा रोते हैं, खेती में कुछ नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इन लोगों के सामने मैनेजर साहब जैसे अगर अनुभवी लोग आएंगे तो किसानों का भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हम बेसिकली, मैं सहकारिता का बारे में कहूँगा तो वही एप्लीकेबल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है। फार्मर्स आर पुअर, फार्मर्स आर वीकर, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, वो फाइनेंशियली वीक है, हम सब बातें कहते हैं। अगर ऐसे सब, जिसका मैं रोल मॉडल बताता हूँ, पद्मश्री विखे पाटिल, पद्मश्री विखे पाटिल जी ने ऑफ ऑल ऑड्स सब सिचुएशन में किसानों का साथ एक उन्होंने इकट्ठा किया। उस जमाने में 300 रुपए का शेयर कैपिटल कलेक्ट करने में उनको 2 साल लगे। किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। अभी हम 100 साल के बाद जब सोचते हैं कि 350 रुपए किसान के पास नहीं था, ये सब फैक्ट है। ऐसे लोगों का संगठन खड़ा करके अपने देश में
सहकारिता के आधार पर उन्होंने पहला शुगर कोऑपरेटिव कारखाना शुरू किया। और किसानों की ताकत क्या होती है, हो सकती है, इसके बारे में उनका मार्गदर्शन आगे आने वाली जनरेशन में मिला। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मर्स का विकास तभी हो सकता है अगर ये एक साथ आए। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, अनुभव की बात एक साथ हो सकती है, भांडवल एक साथ, शेयर कैपिटल हम कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग बेसिकली ज्ञानेश्वर जी जो कहा है कि मार्केटिंग इज आवर बेसिक प्रॉब्लम, फाइनेंस इज आवर बेसिक प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए हम सब लोगों के लिए ये तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा साधन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू कई किसानों को हम जोड़ सकते हैं और उनका भी विकास हो जाएगा और अल्टीमेटली देश का भी विकास होता है। जैसे नैनी से बात कही कि मिडिलमैन, वो मिडिलमैन ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे पास भांडवल कम है, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। इसलिए ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में बहुत कुछ आर्थिक परिवर्तन कर सकता है। ये जो महत्वपूर्ण बात इस ई वेबिनार में हम सब लोगों को मिला है, आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। हम हमेशा ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि हमारा संशोधन जो है यूनिवर्सिटी का, वो किसानों तक जाना चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा हेतु क्या है? हमारा रिसर्च केवल लैब में नहीं रहना चाहिए, किताब में नहीं रहना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी मेरे साथ, हम एक साथ सहमत हो गए कि हमारे कृषि पदवीधर, सरकार गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है एग्रीकल्चर रिसर्च में, क्या वो सही माने किसानों को लाभान्वित कर सकता है? ये बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है इस सेमिनार से हम प्रेरणा लेंगे और जो नहीं आया सेमिनार में उनको भी ज्ञानेश्वर जी जैसे लोग काम कर उनकी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे और किसानों के हाथ एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट, साधन मात्र रूप में दे सकेंगे। तो ये सेमिनार का हमको सब लाभ होगा। मैं यहाँ हमने अपने बुलाया है, इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे RCFC-WR के समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर अडे सर से विनती करती हूँ कि वे आज के वेबिनार का आभार व्यक्त करें। तो क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिम क्षेत्र वनस्पति विज्ञान विभाग सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये जो वेबिनार है, 38वां वेबिनार है। तो इस वेबिनार में हमने पाया कि 4 रिसोर्स पर्सन का हमने मार्गदर्शन सुना। उसमें है CA श्री चेतन शिंदे, श्री ज्ञानेश्वर बोर्ड के जो भी अध्यक्ष है अभिनव किसान संघ मान पुणे, और हमारे डॉक्टर DN मोकाट सर जो है प्रमुख अन्वेषक तथा क्षेत्रीय निदेशक RCFC, और लास्ट में हमने सुना गोपाल राणे जी को। तो इन सब ने अच्छा मार्गदर्शन किया, सबने टेक्निक बताई। हाँ, तो ये सब अतिथिगण हमें मार्गदर्शन किया जिन्होंने, उनका मैं RCFC की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और बाद में हमारा जो RCFC स्टाफ है उन्होंने भी अच्छा तरह से प्रोग्राम कंडक्ट किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।